احمد گرایا آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ وہاں پہ ایسا کریں ریلی نکالیں سیکولرزم کے خلاف, ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ گالی نکالیں گیز کے خلاف, تو پھر آپ ہمارے ملاز کو کوئی بات کریں. ہمارے ملاز ہیں وہ یہاں پہ جو کر رہے ہیں ہم ان سے خود ہی نپٹ لیں گے نا. یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹاک اباؤٹ آر انٹرنل میٹرز سٹنگ اوور دیئر. یا تو کمن گراؤنڈ. انٹرنل کیسے ہے, انٹرنل میٹر کیسے ہے؟ پاکستانی تو آدھے سے زیادہ تو باہر بیٹھے ہیں ادھر ادھر ہو کے. نہیں وہ باہر بیٹھے پہ باہر سر میں مریم صاحب جواب دے سکتا ہوں آپ ایک کو؟ سیکنڈ. ان کی نیشنلٹی, اور دوسری بات ہم لوگ جو ہے نا یو ڈونٹ ہیو سنگل نیشنلٹی آف پاکستان. آپ کے پاس دوسری نیشنلٹیز ہیں, آپ اسائلم لے کے وہاں پہ مولوی کی تربیت کرتے ہیں وہ کیوں ایسے سارے بھائی فیکٹری سے دیکھیں یہ چرچز میں بھی ہوتا ہے, یہ چرچز میں پوپ نے بھی کیے ہیں, پوپ بھی اس چیز کا بڑا نشانہ بنے ہیں, ٹارگٹ بنے. ہم نے تو ہم لوگ تو اسلام کے نام لے. مریم اب میں بولوں, مریم آپ نے بول دی پوری بات. بات تو کمپلیٹ. گرایا بھائی اس کا جواب میں پاکستان میں مجھے دینے دیں. نہیں ایک دفعہ سارے چپ کر جائے, مریم پوری بات کر. مریم جی کو پوری بات گرایا سے بات کی ہے, میں نے گرایا کو سن کے تو میں اس میں آئی ہوں, ٹھیک ہے نا. I wanted to listen to what he has to say because ہم تو ٹویٹس دیکھتے ہیں, یہ چیز ان کے بارے میں سنتے ہیں. I would want to know what kind of a person he is. تو let's talk like decent and educated people. دیکھیں نا وہاں پہ بھی ہوتا ہے. تو اب آپ وہاں پہ آپ نے پوپ کے خلاف نکالا نہیں, آپ نے وہاں پہ ان کے خلاف کوئی بات کی نہیں, آپ وہاں بیٹھ کے ہمارے پاکستان پہ بات کرتے ہیں, حالانکہ ہم نے ایکولی کنڈیم کیا ہے, سب بولے ہیں. تو یہ پھر زیادتی ہے نا. ہاسٹلز میں بھی ہوتا ہے, اسکولز میں وہاں پہ تو تعلیم دی جاتی ہے کہ بچے جو ہیں چھوٹی عمروں میں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جی بچے جو ہیں وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو دیکھ کے ہی کیوں ایسی بات سوچے, وہ لڑکے کو دیکھ کے بھی سوچ سکتا ہے. تو پھر آپ یہ مولویوں کو نہ پکڑیں, اور بھی بہت باتیں کرنے والی آپ کریں. آپ کو اور مولوی کو صحیح کریں, مولوی کو جو پالتے ہیں. چلیں جی اب میں میں تھوڑی سی اس بات میں عرض کرنا چاہوں گا, ایڈ کروں گا اس کو. آپ نے 3 آرمی کے جو کمانڈر ہیں, آرمی کے جو جنرل جو پال رہے ہیں, گرایا سے بولے نا, گرایا کو جواب دینے دیں. سر گرایا کو جواب دینے دیں پلیز. مریم آپ نے نا بڑا سارا ڈائلاگ مارا کہ پڑھے لکھوں کی طرح مکالمہ ہونا چاہیے. پڑھا لکھا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے آتا ہے, ٹھیک ہے. میں 2007 سے نیدرلینڈز میں ہوں, اور اسائلم والا ایسے ہی پروپیگنڈا جیسا میرے خلاف بلاسفمی والا پروپیگنڈا, لیکن آپ بھی اسی پروپیگنڈا اور پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ آئی ہیں. I told you I want to know you myself. اچھا دیکھیں جب سو دیٹس پروپیگنڈا پارٹ. اور میں صرف پاکستانی نیشنل ہوں. یورپ میں 5 سال کے بعد آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں. مجھے 14 سال ہو گئے ہیں, میرے پاس صرف پاکستانی نیشنلٹی ہے. صرف اسی لیے ہے کہ یہ ڈیول نیشنلٹی الاؤ نہیں کرتے. میرا پاکستان پہ رائٹ ہے. پاکستان میرے گھر پہ بنا ہے. میرا گھر, میری زمین, میرا علاقہ, میرا خاندان یہیں تھا جب پاکستان نہیں تھا, اور یہیں ہوگا جب پاکستان نہیں ہوگا. سو پاکستان میرے گھر پہ بنا ہے. میں اپنے گھر کے متعلق بات کر رہا ہوں. میں دنیا میں جہاں مرضی چلا جاؤں, میرے گھر کے ملکیت کے رائٹ ختم نہیں ہو جاتے. یہ پہلی بات. پاکستان نے میرے اوپر کبھی کوئی احسان نہیں کیا. پاکستان نے مجھے کبھی کوئی پیسہ نہیں دیا. میری نسلوں نے اس ملک کو ٹیکس دیا ہے, آج بھی دے رہی ہیں. اور ہم نے اس ملک کی بدماش فوج اور اشرافیہ کو پالا ہے. آپ لوگ ایون جو ٹویٹر پہ تنخواہ دار ہمیں گالیاں دینے والے ہیں, وہ آج بھی ہماری زمینوں اور ہماری جائیدادوں کے ٹیکسوں سے ان کو پیسہ مل رہا ہے. سو ہمارے اوپر پاکستان کا کوئی احسان نہیں ہے. ہم ہیں تو پاکستان ہے, ہم نہیں ہے تو پاکستان. صرف ایک سیکنڈ, صرف آپ ہی کے ٹیکس چلتا ہے یہاں پہ؟ سب کا جاتا ہے, سب کا جاتا ہے, ہمارا بھی جاتا ہے. There are millions of people who are paying taxes. You are not the میں نے آپ کی بات کاٹی نہیں تھی. میں نے آپ کی بات کاٹی نہیں. آپ تو یہیں پہ رہتے تھے, تو ہم جب یہ پارٹیشن ہوئی تھی ہم تو اپنا گھر بار جگہ آپ کی بات دیکھیں, ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے انڈیا سے, امرتسر سے ادھر آئے ہیں. یوتیوں والی نہیں, پلیز مجھے بات. میں نے آپ کی بات کاٹی نہیں تھی. مریم جی دیکھیں, باہر چلے گئے ہیں. مریم یوتیاں نہیں کرنا ہے, میں نے آپ کی بات کاٹی نہیں تھی. Then us. You claim مریم میں نے آپ کی بات کاٹی نہیں تھی. تو یار یہ مریم بات پوری ہونے دیں. آپ کے سوال ہم آپ سے ریکویسٹ ہے ان کا جواب پورا آنے دیں. انہوں نے آپ کی بات تسلی سے سنی, آپ پہ بھی لازم ہے کہ ان کی بات ذرا تسلی سے سنیں. اس کے بعد کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں. دیکھیں بات کاٹے نہیں, ہم نے آپ کی پوری بات سنی, آپ پوری بات کریں. یہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ٹھیک ہے. اب آگے اگلی بات. ایک بنیادی آپ کو فرق نہیں معلوم. 2 بالغ ہے, وہ مرد ہیں, وہ عورت ہیں, وہ کوئی بھی ہیں. 2 بالغ کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں. شادی کرنی ہے, نہیں کرنی, کس کے ساتھ کرنی ہے, وہ ایک بالکل فیل ہے. 6 سال, 7 سال, 8 سال, 10 سال کے بچے کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہاں پہ کنسنٹ نہیں ہوتی. یورپ میں اس جرم کی سزا قتل سے زیادہ ہے. ایسے کیس روز موجود ہیں. یہ بالکل ایک جھوٹ ہے یہ کہہ دیا جائے
کہ یورپ میں بھی ہر جگہ بچوں کے ساتھ لونڈے بازی ہو رہی ہے جیسے پاکستان میں ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم روز دیکھتے ہیں جب پکڑا جاتا ہے, جہاں پہ کیس سامنے آتا ہے اس کی نسلوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. پاکستان میں آپ جیسے لوگ ایگزامپل دیں مجھے پلیز, ایک ایگزامپل دیں, کیونکہ مجھے پتا ہے یورپ میں کیا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے دنیا کی سب سے. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ. بات مجھے پوری کر لینے دیں گی پلیز. آپ مطلب پھر ساتھ ساتھ بات کرتے نا جائیں. ہاں مکالمہ دیکھیں, آپ نے ایک لمبا سا سوال پوچھا, میں آپ کو لمبا سا جواب دوں گا, پھر ہم 1 to 1 لگے رہیں گے, ٹھیک ہے؟ اچھا, بات یہ ہے کہ نیدرلینڈز میں 4-5 سال پہلے ایک کیس آیا, اس نے 11 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا, ٹھیک ہے, قتل نہیں کیا اسے لائف وداؤٹ پیرول ملی. نیدرلینڈز میں قتل پہ 4 سال سزا ہوتی ہے یوزلی, ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ 1-2 سال سزا ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ٹیررزم, پیڈوفیلیا پہ جتنے اسٹرکٹ لاز ہیں, ایون جو پاسٹ کے کیسز سامنے آئے, چرچ کے لوگ بولے, اسٹیٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی, چرچ کو کمپنسیشن دینی پڑی, وہ پریسٹ جو زندہ تھے ان کو جیلوں میں بھیجا گیا. پاکستان میں کون سا پیڈوفائل جیل میں گیا ہے؟ بیسک بنیادی فرق ہی, آپ صرف آپ نہیں, یہ اس قوم کا اوورآل ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایک فالس یا ریئل ایکویکیشن اٹھا لیں گے. میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ یورپ میں بچوں کے ساتھ اگر ہوتا ہے, اور یہ بھی مان لیتا ہوں کہ ہوتا ہے, غلط ہے, جرم ہے, ایسے انسان کو سخت ترین سزا دینی چاہیے, چاہے اس نے عیسائیت کا نقاب اوڑھا ہوا ہے, چاہے اس نے اسلام کا نقاب اوڑھا ہے, چاہے اس نے یہودیت کا نقاب اوڑھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم مولوی کی لونڈے بازی کی بات کرتے ہیں, آپ اسلام کی تلوار اٹھا کے آ جاتے ہیں, آپ پاکستانیت کی تلوار اٹھا کے آ جاتے ہیں کہ اس سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے. یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, یہ عیسائیت میں بھی نہیں ہے. میری بہن, برائی جہاں پہ بھی ہے وہ برائی ہے. برائی کسی اور جگہ پہ برائی ہوتے ہوئے کی مثال سے جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی. یہ کہہ دینا کہ وہاں پہ برائی ہو رہی ہے, آپ وہاں پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ میری بہن, میں پاکستانی ہوں, میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ, اپنے خاندان, اپنی جائیدادیں, اپنا اتنا کچھ 2 دفعہ میری نسل نے قربان کیا اس ملک کے لیے. آپ لوگ تو ایک دفعہ منہ اٹھا کے 47 میں آ گئے. میرے والد نے 80s میں ضیاء دلے کے مارشاء اللہ کی ایگزائل بھگتی ہے, میں باجوے دلے کے مارشاء اللہ کی ایگزائل بھگت رہا ہوں. میرے دوست بھگت نہیں ہیں, میرا گھر ہے, میری ملکیت ہے, میرا ملک ہے, میرا حق ہے, جو مجھ سے گن پوائنٹ پر چھینا ہے اس بدماش فوج نے, ٹھیک ہے. اور آپ مجھے کہتی ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ قربانی دی ہے. میری نسلوں تک کو بے گھر کیا اس ریاست نے, صرف گن پوائنٹ پہ, صرف اختلاف رائے کی وجہ سے. اور میرا آج بھی اس ملک پہ حق آپ لوگوں سے زیادہ ہے, میں خود کہتا ہوں زیادہ ہے. شاید جائیداد کے لحاظ سے میرا ٹیکس بھی زیادہ ہو, لیکن میں نے اس ملک میں بہتری کی لڑائی لڑنے کے لیے قیمت بھی زیادہ ادا کی ہے. میں نے یورپ میں قاتلانہ حملے بھگتے ہیں اس دہشت گرد ریاست کے. ہاؤ کین یو ایون سے کہ کیا نام ہے, میرا اس ملک پہ رائٹ نہیں ہے؟ میں بولوں جی ایک منٹ مریم جی, آپ کی بات کو, مریم جی ایک منٹ, آپ کی بات کو یہ ڈاکٹر احسن راجپوت صاحب بھی کچھ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں, ذرا ان کو 2 منٹ سن لیجیے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب. جی میرے صاحب, میں 2 چیزیں اس میں ایڈ ان کروں گا. احمد صاحب نے بالکل بات واضح کی ہے. جو آپ کا پہلا والا کویسچن تھا پیڈوفیلیا کے بارے میں, ہم اسے اگر کسی پرٹیکولر سیکٹ یا نیشنلزم سے لنک کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. یہ بیسکلی ایک جرم ہے, اس کو جرم ہی کی صورت میں رہنے دیجیے پلیز. جہاں تک ہم اس کو فردر لیتے ہیں, اوورسیز پاکستانیز کی آپ نے بات کی کہ یہ جو ہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے اور یہ وہاں پہ ہی رہے اور ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے پاکستان میں, میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. 29 بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو بھیجا جاتا ہے انہی بیچاروں کی وجہ سے, جن کو ہم بالکل باہر نکال دینا چاہتے ہیں. یہ اگر صرف پیسہ بھیجنا بند کر دیں تو پاکستان صرف 2 مہینے میں چوک ہو کے فارغ ہو جائے گا. یہ ہماری GDP کی حالت ہے. خدا رہا یہ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہم باہر بیٹھ کے میرا خیال میں کچھ بولنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں درد رکھتے ہیں یا اس کو پیسہ واپس بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, چلیے فیملی کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں, جائیدادیں بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں, لیکن ون وے اور ادر وہ پیسہ پاکستان میں داخل ہو رہا ہے. پاکستان اس سے بینیفیشل جو سرکمسٹانسز ہیں وہ اویل کر رہا ہے. ہماری پاکستان کے اندر کیا حالت ہے وہ ہمیں ذرا اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے سپر مارکیٹس کے اندر بھری ہوئی ہیں امپورٹڈ آئٹمس کی, تو پاکستانی خود تو امپورٹڈ پہ چلتے ہیں,
اور باہر جو امپورٹڈ بیچارے جن کو آپ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹڈ ہو چکے ہیں، ان کو آپ اگر ہم گالی دیں گے تو ان کے لیے وہ میرا خیال ہے یہ غیر مناسب بات ہے، اس کو ہمیں اس انداز میں نہیں کہنا چاہیے. دے آر وائٹل ایسٹ آف پاکستان، اور میرا خیال ہے ان کو انکریجمنٹ مگر ملتی ہے. ہاں لیکن دوسری سائڈ پہ ایک اور بھی بڑا فیکٹر ہے، بے انتہا ہماری جو اکیڈیمیا ہے وہ واپس آئی پاکستان میں اسی محبت میں کہ نہیں ہمیں واپس جانا ہے، جس میں ڈاکٹر ہود بھائی جیسے لوگ بھی شامل ہیں، اور بھی بہت لمبی ایک لسٹ ہے. میں آیا نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ سیکشن سارے غلط ہیں. اگر ہم بلیو کرتے ہیں دین محمدی پہ، پہلے تو دین بڑا پرسنل چیز ہے، اس کو فیتھ کو ہمیں بار بار ذکر اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ نے بھی اگر اس کو پریکٹس کرنا تھا تو غار ہرا جاتے تھے، جبکہ آپ کی جو شادی تھی وہ 25 سال کی عمر میں ہو چکی تھی. تو ایک کوشچن کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ جب تک ہم انورڈ نیوز کو دیکھیں گے، یعنی آئسولیشن میں جا کے اپنے آپ کو تھوڑا کمرے میں کسی چلے جائیں، کسی جگہ میں ہو جائیں، جب تک نہیں دیکھیں گے تو وہ شاید اس کا ربط نہیں ملتا. یہ مسجد میں جا کے نہیں ملتا، یہ کسی اور جگہ جا کے نہیں ملتا، یہ ایسی فضول باتیں کہ وہاں ملتا ہے، یہ تنہائی میں صرف ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بڑا واضح ہے کہ یہ رب اور بندے کا معاملہ ہے پرسنل، اس میں کوئی تیسرا آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اور ہوتا ہے تو وہ کچھ اور کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھا بولتے ہیں، مگر تھوڑا سا کر دینا تو ذرا آسانی ہو جائے گی. جی میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں. اصل میں 2-3 کانٹیکس میں ہم دین کو بار بار لا رہے ہیں، مختلف انداز میں لے آتے ہیں. میں یہ ذاتی طور پہ یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رب اور بندے کا معاملہ ہے، اس کو ہم پلیز کسی اور وے میں اگر نہ لائیں تو اس میں انٹرفیئرنس کر کے یا دوسری اس کی ٹھیکیداری کر کے، تو یہ میرا خیال ہے شاید پاکستان اس میں سے زیادہ بینیفٹس، آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے پاکستان. اچھا اب میں آپ سے بات کرتی ہوں. اسی طرح آپ نے فوج کے بارے میں مہیم صاحب بات کی تھی، میں تھوڑا سا عرض کرتا جاؤں. دیکھیے فوج ایز اے انسٹیٹیوشن بڑی ایک مقدس ادارہ ہے، ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا، کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا اپنی فوج کے علاوہ. لیکن ایک کوشچن کھڑا ہوتا ہے اگر اس میں کرپشن موجود ہے. ابھی برٹن میں ایک آپ کے سامنے آیا، ایک جنرل نے اپنے بچے کو اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ میں بھیجا ہوا تھا پڑھائی کے لیے، اور وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے وہاں سے فیس لے رہا تھا. وہ چھوٹی سی اماؤنٹ تھی 36,000 پاؤنڈز کی. میرا خیال ہے شاید وہ اگر میں پاکستان میں کنورژن کرتا ہوں تو شاید 8 لاکھ سے بھی نیچے ہے. 8 لاکھ پہ ایک جنرل کو ریموو کیا جاتا ہے اور سمبولکلی کیا جاتا ہے کہ کرپشن نہیں ہو سکتی. آپ کا کیا خیال ہے ویسٹ میں کرپشن نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے، اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ٹریلینز میں ہے. لیکن کامنر پہ اس کا افیکٹ نہیں ہے. جو ٹریری ہے، جو ایکسچیکر ہے، اس کو اتنا زیادہ سیکرٹ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ذرا سے بھی کسی کی آنکھ آتی ہے تو اس کو پکڑ کے ایک دم وہ جو ہے وہ سمبولکلی پنش کر دیا جاتا ہے. ہماری فوج کے کرنل سے اوپر کے جو ہیں، میں پرٹیکولرلی لیفٹیننٹ کرنل، میں اس پہ بار بار ایک چیز کو کہتا ہوں، ان کے جب کالر پہ ریڈ ٹیگ لگتا ہے تو ان کا دماغ چکرا جاتا ہے. اس سے اوپر آپ دیکھیں تو یہ جو کچھ کرتے ہیں، اس میں سے میں اپنی فیٹرنیٹی کی بات کروں گا، جس میں میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے تمام جتنے ہیں یہ چیف سی جے پیز، چیف آف کیا نام ہے ہمارے سپریم کورٹس، ایون ہائر کورٹس کے بھی، وہ پاکستان میں نہیں رہتے. چیف آف آرمی اسٹاف جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم محب وطن ترین ہیں، اور تمام جنرلز بھی پاکستان نہیں رہتے. کیوں بھائی؟ اتنا برا ہو گیا، آپ ہی نے تو بنایا، آپ ہی نے تو اس کی محب وطنی ہمیں سمجھائی، تو آپ کیوں نہیں وہاں رہنا پسند کرتے؟ کرپشن کی انتہا ہے. اگر آپ اس کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو آپ ملک سے خود غداری کر رہے ہیں. میرے پوائنٹ آف ویو سے کرپشن کو اگر کوئی آدمی کسی بھی صورت میں کہیں پہ بھی اسے نظر آتی ہے، اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی کیا مثال آپ نے فرما دی ہے کہ اگر فاطمہ بھی کرے گی تو تب بھی وہی سزا ہوگی. وہ کرپشن ہے نا، اس کی مثال دی گئی ہے کہ کرائم ہوگا یا کرپشن کسی صورت میں کریٹ ہوگی تو سزا وہاں پہ بھی وہی اپلیکیٹ ہوگی. تو پلیز یہ کسی قسم کے بھی سیکرڈ انسٹیٹیوٹ اور سیکرڈ اس کو سیکرڈ کاؤز کی صورت میں لانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارا ملاحظم ہے یا کوئی بھی اور فیتھ ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مریم صرف 1 سیکنڈ دیجیے گا. دیکھیں جو ریاست کے کوئی بھی محکمے ہیں نا یا ادارے کہہ لیں آپ ان کو، وہ مقدس نہیں ہو سکتے. وہ ہمارے مینجمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے ٹیکس سے چلتے ہیں، چاہے ہم ان کو قرضہ لے کے دیں. پہلی بات.
जो मिसकंडक्ट है पाकिस्तान में वो इंडिविजुअल नहीं है। आप ये कह दें कि चंद जर्नैल या चंद ब्रिगेडियर करप्ट हैं, दिस इज वेरी अनफेयर। मार्शल लगता है 7 लाख की फौज उसके अंदर सर्व करती है, 4.5 लाख फौजियों ने इलेक्शन चोरी किया था, 7 लाख की 7 लाख पूरी फौज डिप्लॉयड थी इलेक्शन मैनेजमेंट में। इट्स ए इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम। फौज मसला है, बाजवा मसला नहीं है। बाजवा रहील वाली ही पॉलिसी को आगे लेके चल रहा है, बाजवा चला जाएगा, नया आएगा, मसला यही रहेगा। ये कह दें कि चंद जर्नैल या चंद ब्रिगेडियर या चंद सितारों वाले करप्ट हैं, और मसला फाइनेंशियल करप्शन का भी नहीं है, मसला इम्प्यूनिटी का है। हम क्यों किसी को मुकद्दस माने? वो जुडिशरी है, वो अदालत है, वो फलाना है। द सेम वे मुल्ला इज जस्ट मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजन। मौलवी का कंडक्ट को, मौलवी को सवाल करना किसी भी सूरत किसी तकदीस में नहीं आता। हम अल्लाह रसूल की बात नहीं कर रहे, हम इस्लाम को बुरा नहीं कह रहे, ठीक है। और को मानता है नहीं मानता, यहीं पे हम दोस्त बैठे हुए हैं, कई मानते होंगे कई नहीं मानते होंगे, किसी फिरके से होगा किसी से भी नहीं होगा, दैट्स पर्सनल थिंग। लेकिन हम एक पॉलिटिकल स्पेस की बात कर रहे हैं। लेकिन फौज का, मेरी मिसाल ले लेना, सादा सी उठाए, मुझे लाहौर से जब उठाया तो मुझे उठाने वाले सिपाही थे। जब मुझे लाहौर में टॉर्चर किया जा रहा था तो टॉर्चर करने वाले सिपाही सूबेदार थे, ऊपर जो थे वो क्या नाम है, एक कर्नल था, एक अब डिप्टी डायरेक्टर बन चुका है, ठीक है। उनको ऊपर हुक्म देने वाला एक ब्रिगेडियर था, ऊपर जाके एक जनरल था। आज के दिन तक सबूतों, गवाहों, हर चीज के बावजूद फौज ने बतौर इदारा हर मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। फौज के साथ मेरी जहां जहां बात भी हुई, हर तरफ मिसालें मौजूद है। फौज मुजरिम को प्रोटेक्ट करती है, शख्स मुजरिम को प्रोटेक्ट नहीं करता। सो इट्स वेरी सिंपलिस्टिक टू से कि हम चंद अफराद को जिम्मेदार ठहरा दें। इससे प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी जब तक फौज एज एन इदारा अकाउंटेबल की जाएगी। जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी आजकल कहते हैं, मंजूर पश्तीन कहता है, जैसे हमारे पास साउथ अफ्रीका से मिसाल मौजूद है। प्रॉपर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाकर मुजरिमों का तयन करके, हदूद रीडिफाइन करके, एंड वी नीड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। करंट फ्रेमवर्क में इस मुल्क के रहने वालों के लिए स्वाय अजाब के पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। सर मैं कुछ ऐड करूं कैदी भाई? मैं इनकी एक मिनट सर, मैं ना ये अहमद गुराया की पिछली बातों का मैं पहले जवाब दे दूं। आई हैव बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग। अब नहीं, ये तो पूरा कोई वन ऑन वन चैट ये असल में हम मौजूद हैं। he was replying to me। चले आप 30 सेकंड ले लें, आप बोलें। यूरोप में जितने प्यूरोफाइल्स हैं, उधर अमेरिका में जितने हैं, कनाडा में जितने हैं, उन सबका सबको पता है, पूरी दुनिया में उनकी बात होती है, उनकी अवाम भी बात करती है। यूके में उधर उनके स्कूल्स में जितने रेप्स हुए हैं उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, और इवन यहाँ तक कि वो उनका कोई केस भी नहीं वो कर रहे हैं। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, अगर आपको पता है तो आपको ये चीज़ का भी पता होना चाहिए। अमेरिका, इंडिया ये टॉप पर है इस वक्त दुनिया में, और यूके भी, यूरोप में भी, सॉरी यूके ऑन द रेपिंग कंट्री, ये टॉप पर है, ठीक है। तो पहली बात तो आपकी ये थी कि आप कह रहे थे उनको सजा मिलती है, ये होता है। मुझे बताएं आप रेप और पीडोफिलिया में फर्क ही नहीं समझती मेरी बहन। बहस किस चीज की? कौन से पोप को, अब आप मुझे कट ना करें, कौन से पोप को सजा मिली है? जो बाइडेन है उसका भी यही है कि वो ही इज अ पीडोफाइल। प्रिंस एंड्रयू का निकला है, वो जेफरी आइंस्टीन के जो आइलैंड्स निकले हैं उन सब की बातें निकली हैं। ही वाज किल्ड इन द जेल, और पता नहीं वो गायब हो गया ये शो करके कि मैं मर गया हूँ, ये जहर खा लिया है या व्हाटएवर, ठीक है। तो आप फुद्दू बनाएं उनको जिनको पता ना हो। तो जिनको पता है ना कि दुनिया में क्या हो रहा है, उनको आप फुद्दू नहीं बना सकते। दूसरी बात हुई जी करप्शन की। करप्शन इस वक्त पूरी दुनिया का बहुत बड़ा इशू है। इट इज़ नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट इज़ ऑल ओवर। अमेरिका की आर्मी है, उधर भी बहुत करप्शन होती है, ठीक है। वो यहाँ पे जब अफगानिस्तान में थे, यहाँ से हीरोइन और ड्रग स्मगल वहाँ करते थे, ठीक हो गया, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा इस चीज के इल्जाम भी लगे हैं। किसी ने उनको, वो खुद वहाँ पे सुसाइड्स करते हैं, लेकिन कभी उनको उनका कोई कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, कोई उनको सजाएं नहीं मिली। तो प्लीज आप यहाँ पे तो ये इस तरह के ना ऐसी बातें करके आप बेवकूफ ना समझे कि अवाम बेवकूफ नहीं है यहाँ पे। और तीसरी बात आपकी थी कि आप बाहर बैठे हुए हैं, तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप बाहर बैठ के मुल्क में कयास क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपके साथ ज्यादती हुई है, आप वाहिद बंदे हैं जिससे ज्यादती हो। अगर सपोज करें यू आर ओनली वन, आप अपना ग्रज, आप नफरत निकाल रहे हैं आर्मी के ऊपर और उन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग ओवर हियर एंड वी हैव, किसी ने हमें नहीं उठाया, ठीक है। इंडिया में भी उठा लेते हैं, इंडिया में भी एजेंसीज आती है, उठा लेती है, गायब कर देती है, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट को भी वहां पे नहीं आप बोलते।
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اور پھر یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ باہر کے بیٹھ کے جو ہمیں پیسے بیچتے ہیں یہ کرتے ہیں, پیسے بیچ کے ہمیں خرید لیتے ہیں. ان کا کیا, ان کا حق ہو جاتا ہے کہ ہماری آرمی پہ بولے؟ یہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ٹیررزم تو ہم نے بھگتنی ہے, بوموں میں تو ہم لوگوں نے مرنا ہے. مطلب آپ لوگ اتنے, مطلب آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے سوچتے ہیں, آپ لوگ یہ سوچ نہیں سکتے. مریم جی آپ کا موقف آ گیا, باقی پاکستانی جو باہر سے بھیجتے ہیں, مریم جی آپ کا موقف آ گیا. میں آپ کا سوال کا جواب یہ ڈاکٹر سکلین صاحب کو دیتا ہوں, یہ آپ کو جواب دیں گے, اس کے بعد ہاں جی سر, جی سر السلام علیکم. قید تنائی بھائی, اچھا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں. ویسے تو بہت سارے کچھ اور لوگ سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہمارے ڈاکٹر میں وہ آدمی ہوں پاکستانی, جی, جو در بدر ہے, اور میرا بھی انٹرسٹ اور میرا بھی لو اس خاک اور اس وطن سے اتنا ہی ہے جتنا مریم اور یہ احمد وقاص کے پاکستان سے. سر 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ پاکستان تباہ ہو چکا ہے, ابھی ہم صرف بچانا ہے. 5 پوائنٹ کہہ لیں اسی کو اب پھیلاتے جائیں, لیکن وہ محاورتاً 5 پوائنٹ فارمولہ ہے کہ پوری قوم کو فوج بنایا جائے, ساری قوم کو فوجی پارٹی, ایک پارٹی بنے گی اب پاکستان میں, سب ایک پارٹی. اچھا ان دا مین ٹائم یہ صبح سے چل رہا تھا ٹاپک, لائک 2-3 گھنٹے پہلے سے. آپ یقین مانے ابھی ریڈ کلر کے اندر ایک اور بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ عراق نے بولا ہے امریکہ نکل جاؤ, نہیں نکلتا ہے, رائٹ. سیریا نے آج پھر بولا ہے ابھی ایئر اسٹرائکس کی رائٹ ایٹ دا بارڈر, جیسے پارا چنار ٹائپ کا, اور اس نے کہا نکل جاؤ, نہیں نکلتا. اب یہ ہم ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں امریکی انخلا کے بعد کیا تعلق. آپ پلیز اونچا بولے, آواز اس کا یقین مانے سمجھ 2003 کے بعد سے آج 18 سال ہو گیا. کیا عراق نکل گیا امریکہ سے؟ نہیں نکلا. کیا سوری, امریکہ نکل گیا عراق سے؟ نہیں نکلا. اسی طرح سے کیا امریکہ نکل گیا باقی ریجن میڈل ایسٹ سے؟ نہیں نکلا. آج بھی وہ وہاں بیٹھے. تو یہ تو ٹاپک تو بہت ہی یوز لیس سا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. طالبان مطلب امریکہ کے نکلنے سے پہلے بھی جیسے ہمارا خون اور کشت خون ہوتا رہا ہے پاکستانیوں کو, وہ ہوتا رہے گا, اور بعد میں بھی ہوتا رہے گا. باقی جو بچا کچھ پاکستان کو بچانے کے لیے آج 26,985واں جو ہے بعد التحریر پاکستان کے لبریشن کے بعد کا دن ہے. اگر ہمیں اس پاکستان کو بچانے یقین مانے, آئی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن اگر آرمی فنڈنگ کرتی ہے ان ملاؤں کی, ان مفتیوں کی, لیکن ان کو کم از کم تھوڑا سا بنائے نا, باکردار بنائے ان کو. جو وہ بولتے ہیں منہ سے, جو آ کے پبلک میڈیا میں بولتے ہیں, ان کی سیرت بھی وہی ہونی چاہیے, ان کے قول اور کردار میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو میرا ایک تجویز یہ ہے کہ سارے ملاؤں کو, سارے مفتیوں کو بھی بالکل ایسی ریکروٹمنٹ پروسیجر سے گزارا جائے جیسے آرمی کے ایک جنرل سپاہی کو گزارا جاتا ہے ریکروٹمنٹ کے دوران, کہ بھائی منیمم کرائٹیریا یہ ہے ٹو سلیکٹ. اب ایسا نہیں ہے اوپنلی. پھر دوسری آج کل بڑے این جی اوز کی یہ لگا رہے, کم از کم کچھ 40-50 این جی اوز کام کر رہے ہیں, جیسے وہاں طالبان ادھر سے امریکن سے بھی کھا رہے ہیں تو وہ این جی اوز سے بھی کھا رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارے یہ جو ملا ایک پیرل گورنمنٹ چلاتے ہیں نا, ان کو آرمی بھی فنڈ دے رہی ہوتی ہے, اوپر سے این جی اوز بھی دے رہی ہوتی ہے. اور پھر کہ بینگ ہمارے کلیرک ہیں, ہمارے سینئر علماء ہیں, اس ناطے جو ہر ایک گھر والا جو ہے وہ ان کو تھوڑا کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے. سو اٹس لائک اے ٹرپل فنڈنگ اینڈ وی شوڈ ری تھنک اسٹاپ فار اے وائل. اینڈ اگر ہم جو ہے ان کی یعنی ملاؤں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی چھلنی سے گزارا جائے جو کہ جسٹ لائک ایک ملٹری سولجر کو گزارا جاتا ہے. یقین مانے ہم لوگ آرمی کے دشمن نہیں ہیں. اگر ہمیں بچانا ہے, ہمیں پوری قوم کو فوج بنانا ہے, آدھی قوم کو کوارنٹائن کے چکر میں بٹھا نہیں دینا ہے, رائٹ. تو جب ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب فوج کھڑی ہوتی ہے تو عوام کو بٹھا دیا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم 22 کروڑ کی پوری فوج بنا دیں, ہم مسئلے ختم کر دیں سب فوج. جی اب بالکل یہ پوری مسئلے جھنجٹ ہی ختم ہو جائے. چلے بھی بڑا ہے 22 کروڑ ڈالیں گے, 22 کروڑ کی عوام جو ہے وہ فوجی بن جائے. وہ اچھا ککول کا نصاب بھی ویسے مدرسے والا ہی ہے. کروں ایک سیکنڈ میں ان کی باتیں رسپونڈ کرتی ہوں. دیکھیں بھائی میری بات سنیں, پوری دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے حالات خراب ہے. اگر آپ انٹرنیشنل نیوز پڑھتے ہو نا, اور آپ کو اگر کوئی آپ کے باہر رشتہ دار رہتے ہیں تو آپ ان سے پتہ کریں کہ پوری دنیا میں جو حالات ہیں نا اس وقت ہر طرف ہی خراب ہیں. ٹھیک ہے, آپ مڈل ایسٹ دیکھ لیں, آپ امریکہ دیکھ لیں, آپ یورپ دیکھ لیں, آپ انڈیا دیکھ لیں,
تو اس صرف یہ کہنا کہ پاکستان میں حالات خراب ہے تو یہ تو پھر غلط بات ہے. یہ جذبہ میری بہن کا آپ آپ کر لینا. میں ان کی دو باتوں کا جواب دے دوں پھر آپ کنٹینیو کرنا, ٹھیک ہے. آپ عراق کا کہہ رہے تھے کہ عراق میں ابھی تک امریکہ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو ابھی تک پتا نہیں کہ امریکہ نکل چکا ہے وہاں سے. یہاں تک کہ سعودی عربیہ سے بھی انہوں نے اپنے پیٹریوٹ میزائلز نکال دی ہیں, انہوں نے اپنے تھرڈ میزائلز نکال دیے ہیں. اور اگر امریکہ عراق میں بیٹھا ہوتا اف یو تھنک سو, تو پھر اس وقت اسرائیل کو اتنی مارنا پڑتی حماس سے, اور ابھی اس وقت پھر ان کی پیس ڈیلز نہ ہوتی اور چپ کر کے وہ پھر امریکہ کو بیچ میں لے کر نہ آتے. ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. امریکہ اپنے ساتھ میں نے کام کیا, وہاں پہ امریکہ کا میں نے کام کیا عراق کے اندر امریکن فورسز کے ساتھ. آپ مجھے کریکٹ نہیں کر سکتے. امریکہ ابھی بھی بم پروف جو 12 میٹر اونچی وال کے درمیان میں سینڈ بیگز رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. امریکہ کی ایمبیسی کو ایران اور دنیا کی سب سے بڑی بم پروف ایمبیسی کی وہیں 2 سال پہلے کی بات ہے, ان کی ایمبیسی پہ بم مارے تھے, اور امریکنز وہاں پہ ان کی جو گورنمنٹ ہے عراقی ان کے حوالے کر کے ان کو ادھر کے لوگوں نے نکالا ہے وہاں سے. جس طرح ہم لوگ یہاں سے ہم لوگ وہاں سے انہوں نے پیٹریوٹ میزائل بھی نکالے ہیں. بالکل ایسے جیسے عمران خان ایک مریم میری بہن صرف ایک سوال want to face the facts, ٹھیک ہے. if you want, مجھے اوپر کاش اوپر وہ جگہ ہوتی, میں آپ کو نا ایک بات کا میں آپ کو لنک میں ثابت کر دیتی, لنک لگا دیتی اور آپ پھر پڑھ لیتے, آپ دیکھ لیتے. ٹھیک ہے, اور جو ٹرمپ کے ٹائم پہ جو امریکہ میں ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے حالات خراب تھے اور اب بہتر کی طرف جا رہے ہیں. مریم میں بالکل مریم بہن میں آپ کے ساتھ ہوں. صرف چھوٹی سی ایک گزارش ہے, جو آپ ٹی وی چینل دیکھتی ہیں مجھے بتا دیں, میں بھی وہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور جو آپ انٹرنیشنل نیوز دیکھیں, آپ پتہ کیا کریں, آپ ٹویٹر کے اوپر ہوتے ہیں سوائے آرمی کو گالیاں دینے, باجوہ کو گالیاں دینے, عمران خان کو گالیاں دینے, وہاں بیٹھ کے وہ 2-4 وہ چینے مینے پکڑ کے پیسے دے کے, تو جی FATF سے پہلے آپ وہاں پہ جو جلسے کرتے جلوس, چھوٹا موٹا جلوسی جلسے کرتے ہیں, اس سے پہلے آپ جو ہے نا آپ ٹویٹر پہ آ کے آپ ذرا نیوز پڑھا کریں نا. آپ نیوز پڑھیں. کون سی بات میری بہن انہوں نے G7 میں بھی کہا کہ چائنا از اے تھریٹ, دے ہیو ڈکلیئرڈ اٹ. اور اس وقت امریکہ کا ٹوٹل فوکس چائنا پہ ہے, اور وہ پاکستان کا اس وقت ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان جو ہے وہ بیسس نہیں دے گا تو یہ ہے تو وہ یہاں پہ ہوئیں گے. پتہ نہیں ان کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ چائنا چاہتا ہے امریکہ یہاں پہ رکے, نہ ایران چاہتا ہے امریکہ یہاں پہ رکے, نہ تاجکستان چاہتا ہے, نہ رشیا چاہتا ہے, نہ پاکستان چاہتا ہے. پاکستان اکیلا یہ اتنا بڑا سٹینڈ لینے والا نہیں ہے. وی ہیو دا بیکنگ وچ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تھینک یو. سوال مریم طیبہ سے کیا جا سکتا ہے سوال. مریم صرف میں گزارش کر رہا ہوں کہ میری بہن مجھے چند ٹی وی چینلز اور ان کے نام بتا دو. اور دوسرا سوال میری بہن ہے کہ یہ ہورو والا ٹیکا کہاں سے ملتا ہے؟ مجھے تو ایسی باتوں کا نہیں پتا, ہورو ہمارے ٹیکے کا, یہ آپ کا ہی کام ہے. I'm a decent person, I do not talk like that. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نیوز چینلز بتا دوں. میں آپ کو سارے جہاں پہ یہ خبر, آپ وہ پڑھے پریس ٹی وی دیکھیں, آپ وہ دوسرے یہ ادھر دیکھیں, نہیں اس کے اوپر دیکھیں, ٹویٹر کے اوپر دیکھیں جو نیوز چل رہی ہیں. آپ ان کا وہ جو رشین ہیں وہ دیکھیں, آپ BBC دیکھیں, آپ امریکن والے جو ہیں ان کے دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آئے گی. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے خبریں کہاں سے لینی ہیں, تو پھر مجھے بتائیں میرے بھائی, آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کے پرسپیکٹیو والی خبریں پوچھ رہا ہوں نا, جو آپ کو نظر آتا ہے. میرا کام ہے آپ کو نالج دینا, میرا کام ہے آپ کو بات بتانا جو مجھے پتا ہے. میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اگر مجھے جب یہ ملیں گے میں آپ کو ہر چیز ایک پوائنٹ کے ساتھ ثابت کر کے دکھا دوں گی. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں, آپ اتنے ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, اتنے زبردست انسان آپ ہیں, تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے. میں تو حیران اس بات پہ ہو رہی ہوں. دیکھیں نا مریم میری بہن, میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا کسی BBC پہ CNN پہ کہ جو بائیڈن پیڈوفائل ہے, یا آپ نے ایک سیکنڈ, جب جو بائیڈن, ایک سیکنڈ بھائی, جب جو بائیڈن کی جب کیمپین چل رہی تھی, تو وہ جو لڑکی کے کان میں کہہ رہا تھا, ایسے باتیں کر رہا تھا, وہ آپ نے نہیں دیکھا؟ میں آپ کو ڈھونڈ دوں, مجھے بھیجیے گا اس ویڈیو میں. وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں پیڈوفائل ہوں؟ اس کو پتہ نہیں کچھ کہہ رہا تھا. میں آپ کو ایکسپلین کروں یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں میری بہن, آپ نے کہا کہ جو بائیڈن پیڈوفائل ہے, people were saying he's a pedophile, he has this record. آپ کو اس کا پتا ہے, اس کے جیفری ایپسٹین کا پتا ہے؟ میں تھوڑی سی ایڈنگ کروں گا. جیفری ایپسٹین کا پتا ہے, اس میں آپ کو پتا ہے مریم جی ڈاکٹر صاحب کو بات کرنے تھے. مریم ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا دیکھیے گا.
हम मेरे ख्याल है इंडिविजुअल सेंट्रिक हो रहे हैं इस वक्त रादर देन द बेसिक टॉपिक्स। देखिए, अगर हम किसी आदमी को इंडिविजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इमरान साहब के बारे में मेरा ख्याल है वो जो सरहद का लड़का है वो नेशनल असेंबली वाला वो भी बड़ा मार्क्ड है। तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू से जरा निकल जाए तो कुछ दूसरी तरफ आते हैं। ये किसी एक को सेंट्रिक करके जी ऐसा हुआ, आपकी इन्फो में मैं थोड़ा सा ऐड इन करूंगा, ये आपके पास गलत इन्फो है। सिर्फ गूगल में सिर्फ इतना पुट कर लीजिए कि वेस्टर्न या अमेरिकन बेसिस इन द वर्ल्ड फ्रंट, तो आपके सामने इराक के बेसिस भी आ जाएंगे। आपको किसी ने गलत इन्फो दी है सऊदी अरेबिया में, दे आर वेल एम्बेडेड इन। सिर्फ उन्होंने किया इतना सा है कि वहां पे कुछ चीजों को मनवाने के लिए यानी लास्ट MBS वगैरह के उसमें वो तकरीबन 1 ट्रिलियन का इंजेक्शन दिया गया था ट्रम्प को, बाइडन को अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। 2 इंजेक्शन वो देकर आया था, एक अराउंड 450 बिलियन का था, दूसरा 600 सम बिलियन का था, लगभग 1 ट्रिलियन से ऊपर था। जब तक वो बाइडन को रिसीव नहीं होगा ये सारा लेग पोलिंग है वो की जाती है, वो एक बेसिक्स है। आप कहें कि वो इंटरेस्ट से निकल गए हैं, नहीं निकले। हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। देखिए, अगर हम कहते हैं कि जी दूध की नहरें बह रही हैं पाकिस्तान में, हमारा भी मुसलसल विजिट रहता है, 8-8 10 दिन 15 दिन कोर्टों में भी जाते हैं, सारा कुछ हाल देखते हैं। वहां पे जितनी चीजें उनसे डे बाय डे लिंक देना है, मुसलसल हमारी फैमिलीज के मेंबर्स, मेरे पेरेंट्स वहां पे हैं, मेरे बहन भाइयों में से अभी तक वहीं पे हैं, मुसलसल लिंक इन हम लोग। इकोनॉमिक रीजन से एक आधा भाई अगर बाहर आ गया और उसके अंदर उसमें उसके कई रीजंस होते हैं, इकोनॉमिक सबसे बड़ा होता है। उसके साथ कई दफा जिस तरह हमारे गुराय साहब हैं, इनके साथ सिक्योरिटी थ्रेट लगा दिया गया बेचारों के साथ, उस वजह से उन्हें निकलना पड़ा। उनके पास एग्जिट स्ट्रेटजी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था इस वक्त। लेकिन मेरा ख्याल है जाती तौर पे मेरे से अगर पूछा जाए तो इतने ही मुहिब वतन है जितना कोई और है। तो प्लीज मेरा ख्याल है इस गुफ्तगू से हम किसी को अगर वो करना चाह रहे हैं और लेबल कर रहे हैं तो इससे हमें गुरेज करना चाहिए। मुझे याद आया कि वो ट्रम्प ने ना, ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि FBI जो है ना वो बाइडेन का ये पीडोफिलिया का उसका चेक करे। इस पे वो केस वो दे वांटेड इट। आप इन्वेस्ट ये गूगल करके आप बेशक चेक कर लें। मेरी बहन भाई कई लड़कियां सामने आई थी, कई लड़कियां सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमारे साथ ऐसी हरकतें की हुई हैं। मुझे याद है। मैं आपको एक मिनट मरियम जी, आपको सिर्फ 1 मिनट में दे रहा हूँ, ये आपका फाइनल मिनट है। आप जो हमारा टॉपिक है उससे हट गई हैं, काफी देर हो गई बात। आप मुझे टॉपिक पता नहीं है एक्चुअली, मुझे पता नहीं है। बता देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। तो मुल्ला तो ये आपको टॉपिक बता देता हूँ मैं। मरियम आपको ना मैं कल स्पेस बनाऊंगा, आप आइएगा, हम बात कर लेंगे। यहाँ पे बहुत डिफरेंट लाइट गपशप हो रही थी एंड यू आर वेलकम एनी टाइम। अगर मुझे आप DM भी कर दें, मेरा DM पब्लिक के लिए ओपन है। सो जहाँ पे हम बात कर सकते हैं टॉपिक, मैं DM नहीं करूंगी, आप मुझे कर लीजिएगा। आप मुझे इनवाइट कर लीजिएगा, मैं आपको ये सारे प्रूफ, सारे लिंक्स मैं आपको सेंड कर दूंगी और फिर वी विल डिस्कस। फिर आप ही ऊपर लगाते रहना या आप उनको जो भी है आप मेंशन कर लेना, ठीक है? भाई एक टॉपिक है कि 400 दिन तक रखा ऑस्ट्रेलिया ने अपने कार्डिनल को। कार्डिनल ऐसा होता है जो मुल्लाओं को भी मुल्ला होता है, जो मुफ्तियों को भी मुफ्ती होता है। कार्डिनल यू नो लाइक रीजनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोप है वो। ही वाज बीइंग इन्वॉल्व। और वो बच्चे जो है ना वो 7-10 साल के थे, आज वो 25 साल के हो रहा है। एक फैमिली को तो बजौरे जो भी कहें कि उनको तो बैकआउट करवा दिया गया है। कोर्ट और दुनिया भर की चर्च मिशनरी का प्रेशर था। दूसरा बच्चे की फैमिली कहती है हम नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 400 दिनों तक उसको जेल में रखा है। कोर्ट ने उसको ऑन द डाउट्स ऑफ कि नॉट इनफ रीजंस उसको रिहा कर दिया है। तो बहरहाल ये अब मैं लड़ाना नहीं चाह रहा हूँ, दिस इज द लॉ। अब आप ये बताइए कि आप हमारे मुफ्ती को कितने दिनों के बाद छोड़ेंगी? ये इनको छोड़े, वो अपना जिया भाई कुछ काफी देर से कहना चाह रहे थे। हाँ जियाउल्लाह पूछ बोला। बहुत शुक्रिया। असल में आप जिस तरह वो आर्गूमेंट हो रहा था एक वकास भाई और मैडम के दरमियान, तो ये तो मतलब जो टॉपिक्स आपने रखा था और उसमें बात पीडोफिलिया से लेके पॉलिटिक्स तक और फिर वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत सारी चीजें आ गई। असल में मेरे ख्याल में अगर हम चीजों को उस मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स को रख लें, मिसाल के तौर पे मैं आपको 2-3 पॉइंट्स पे मैं वो कोशिश करूंगा, अगर आप मुझे 3-4 मिनट देंगे तो
मेहरबानी होगी। सबसे पहली बात जो है वो ब्लास्फेमी की है, जो कि वकास भाई के साथ एक मुज़ाकरा हुआ और उन पे इल्जामात भी लगाए गए या स्टेट की तरफ से या फिर उस तो वकास भाई की स्टोरी के अलावा मैं खुद ब्लास्फेमी पे काम कर रहा हूँ। पिछले 3-4 साल से मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे पास सैकड़ों स्टोरीज हैं। उसमें वकास भाई के खिलाफ सिर्फ कैंपेन नहीं चली या लेफ्ट वर्किंग, उसमें इमरान खान आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कैंपेन चली है ब्लास्फेमी की, आपके जनरल बाजवा के खिलाफ जो है कैंपेन चली है। तो ये ब्लास्फेमी की जो कैंपेन है उसमें वो सिर्फ जर्नलिस्ट या हमारे इंटेलेक्चुअल या एकेडेमिया या उसके खिलाफ नहीं चली है। मेरा जो स्टूडेंट था मशाल खान जो यूनिवर्सिटी में मारा गया, तो ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के खिलाफ, उसमें बैंक मैनेजर मारा जाता है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड जो है बैंक मैनेजर को कत्ल कर लेता है, वो मसले की बुनियाद पे भी होता है। फिर आप इसके स्टेटिस्टिक्स देख लें, तो अगर आप स्टेटिस्टिक्स देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा वाकयात पंजाब में हुए हैं। मतलब अगर आप आबादी के रोशे से भी देख लें तो उसमें भी सबसे ज्यादा वाकयात पंजाब में हुए हैं, उसके बाद जो है सिंध में हुए, उसके बाद केपी में हुए, उसके बाद सिंध में, उसके बाद बलूचिस्तान में और उसके बाद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में। तो टोटली बलूचिस्तान में जो वाकयात हुए वो 7-8 वाकयात हैं 1500 वाकयात में, जो कि जनरल जिया के बाद से जब से ये ब्लास्फेमी लॉ बना है उसके बाद जो ब्लास्फेमी पॉलिटिक्स शुरू हुई है। तो ये नवाज शरीफ करता था पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जिस वक्त वो एजेंसियों के साथ मिला होता था, उनके पास कुछ वो लोग थे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ उसको खादिम रजवी से पिटवाया गया। उसके बाद जो है आपने देख लिया कि वो इमरान खान के खिलाफ भी अभी थोड़ी दिन पहले निकल आए थे, वो पुलिस वालों को भी कत्ल कर दिया, उनको बैन भी कर दिया। तो वो टीएलपी वाला एक लड़का सुना रहा था, तो इन बच्चों को तो पता नहीं होता कि सियासत कहाँ से कंट्रोल होती है या अबसार आलम को गोली क्यों मारी गई, उसने कौन सा ट्वीट किया था, उसने कौन सा जिक्र किया था। तो ये चीजें समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात सतही लेवल पे बात हो रही थी, तो ये चीजें मतलब अकेडमी के लिए आप चीजों को देख लें, इस पे थोड़ा सा रिसर्च कर ले तो आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नजर आ जाएगा। तो ब्लास्फेमी का मतलब वो सिर्फ उसको वो इस क्यों करते हैं ब्लास्फेमी का, जिस तरह रेप के विक्टिम्स जो हैं वो मतलब पावर से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसी तरह ब्लास्फेमी भी एक पावर रिलेटेड चीज है। अगर इसमें कोई आम बंदा कोई जो है वो उस पे इल्जाम लग जाता है तो या तो कत्ल हो जाता है या बेचारा उसको मुल्क छोड़ना पड़ता है, या फिर लेकिन अगर कोई ताकतवर हो तो वो फिर खादिम रजवी को गले से पकड़ लेता है, क्योंकि यही खादिम रजवी थे और इसके साथ वो दूसरा पीर था। इन दोनों ने जब कहा कि ये आसिया मसीह के केस में कि ये तीनों जजेस वाजिबुल कत्ल हैं, तो फिर जनरल फैज को पता था, उसने डायरेक्ट इसको गले से पकड़ा, दोनों पे दहशतगर्दी के मुकदमे। एक पीर ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने उन जजों का नाम भी नहीं लिया। क्यों? वो चीफ जस्टिस तीनों उसके सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थे, लेकिन ये कोई गरीब बंदा होता ना तो ये अवाम उसकी दुर्गत बना लेती। तो ये चीजें पावर से हैं। दूसरा पॉइंट जो है, मतलब मैं आपको पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ पीडोफिलिया का। आप इस पे एक टेड टॉक देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पीडोफिलिया का जो इशू है ना, ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरी दुनिया में है। मिसाल के तौर पे वो बताते हैं कि बरतानिया की तकरीबन 6 करोड़ आबादी है और दुनिया में इस वक्त तकरीबन 6 करोड़ लोग जो हैं वो पीडोफिलिया का वो मतलब वो साइकोलॉजिकल उनकी ओरिएंटेशन या बीमारी में मुब्तला है। अब मसला तो ये है, लेकिन अब जब इन 6 करोड़ लोगों को आप पूरी दुनिया में देखते हैं तो वो पूरी दुनिया उसको मरीजों की तरह से या किसी बीमारी या जुर्म की तनाजुर में देखती है। लेकिन जब हमारे यहाँ हमारे कल्चर में हमारी सोसाइटी में हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं, मिसाल के तौर पे अभी ये एक बच्चे ने मदरसे में अपनी वीडियो खुद बनवाई जब उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और आपने देखा कि बाद में एक दूसरा मौलवी आया और वो उसको सहाबा तक ले गया कि सहाबा के दौर में भी ऐसे वाकयात होते थे और उसको डिफेंड करने लगा। तो यहाँ पे ये जो तकद्दुस की बात हो रही थी, जो वकास भाई भी कह रहे थे कि जब हम बात करते हैं ना, वो एक दिन मुझसे एक दोस्त ने पूछा कि यार तुम मौलवियों के खिलाफ क्यों लगे? मैंने कहा नहीं, मैं मौलवियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फौज के खिलाफ नहीं हूँ। जब हम बात करते हैं ना उसूल की करते हैं, सिविल सुप्रीमेसी की करते हैं, इदारों की करते हैं कि मुल्क कैसे चलाए जाते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त 200 ममालिक हैं। आप उसको देख लें, सीरिया को देख लें, आप पाकिस्तान को देख ले, आप सिर्फ इजराइल को देख ले, पूरे अरब दुनिया में डिक्टेटरशिप्स हैं। इजराइल में मुकम्मल तौर आपने कभी देखा हो कि वहां पे आपस में इक्तिदार की लड़ाई है, तो इक्तिदार की लड़ाई खत्म करने के लिए जो बुनियादी उसूल है ना, वो है इक्तिदार और अमन तरीके से मुंतकिल करना, उसको कहते हैं जमहूरियत। इसी तरह आप एक और पर्सपेक्टिव में देखें तालिबान को, जो आपने बड़ा टाइटल दिया हुआ है। अब तालिबान जो है पाकिस्तान को अफगानिस्तान में
कंट्रोल के लिए वाहिद प्रॉक्सीज जो मिले हैं, जो कि अमेरिका ने उस वक्त बनाए थे रूस के खिलाफ, तो उन लोग ये वही लोग थे जिनको अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर हुकूमत दी। जब अलकायदा ने अफगानिस्तान को यूज किया और अमेरिका दोबारा आया तो उनसे हुकूमत लेके नेशनलिस्टों को दी। अब पाकिस्तान की पॉलिसी देख लें कि मतलब स्टेट की पॉलिसी कि उन्होंने हुकूमत के साथ उनके साथ इत्तेहाद की बजाय उन प्रॉक्सीज को सेलेक्ट किया। तो वो प्रॉक्सीज हमेशा हमारे गले पड़ते। इन प्रॉक्सीज की वजह से हमने मतलब इनको इस्तेमाल करते करते हमने कश्मीर का 1 इंच कब्जा जो है नहीं छुड़वाया 70 साल में। तो हम अफगानिस्तान को कभी तालिबान से कंट्रोल नहीं कर। अब आप पूछेंगे कि यार आप लोग तो बजब्ती नहीं, ये तालिबान या मौलवी लोग जिस तरह फौजी कोई हमारा कजन होता है, कोई भाई होता है, मौलवी भी हमारे भाई होते हैं, इसी तरह तालिबान में भी वो कोई अफगान है, कुछ यहाँ पाकिस्तानी मदारिस से लोग जाते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये कि अगर ये वाकई इतने अच्छे लोग हैं तो फिर आप पाकिस्तान में क्यों तालिबान की हुकूमत नहीं बनाते? यानी आप दूसरों के लिए शरीयत चाहते हैं, अपने लिए दूसरा निजाम चाहते हैं। यानी आप दूसरे मुल्क पे एक ऐसी प्रॉक्सीज को वो इम्पोज करना चाहते हैं जो कि वो बाई फोर्स हुकूमत लेना चाहते हैं। और बाई फोर्स लेने का जो जमाना है वो तकरीबन पूरी दुनिया से गया है। और जिन जिन ममालिक में अभी तक मतलब लोगों ने बजोर ताकत कब्जा जमाया हुआ है, तो वो ममालिक पीछे हैं, चाहे वो सऊदी अरब जैसा अमीर तरीन मुल्क क्यों हो, लेकिन वो और जो सिविल लिबर्टीज है। ब्रेकिंग न्यूज की ब्रेक ज़िया भाई 5 सेकंड की। अभी इसराइल के 3 मेजर आउटलेट्स ने वेरीफाई करके न्यूज चलाई है तारीख और नामों के साथ कि जुल्फी बुखारी हेड ऑफ मोसाद से जाके मिले थे, और नवंबर वाली खबर दोबारा तस्दीक की है इसराइली मीडिया ने इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए। अब आप जारी रखें। जी। तो असल में ये सारी चीजें हैं कि जब आप पॉलिटिक्स डिस्कस करती हैं और इन इश्यूज को मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान की तालिबानाइजेशन की पॉलिसी को डिपेंड करूं। मैं शाह महमूद कुरैशी को, इसका नुकसान क्या है कि शाह महमूद कुरैशी जब कंफ्यूज हो जाता है अफगानिस्तान में, एक जर्नलिस्ट वो उसको पकड़ लेता है कि आप उसामा को शहीद कहते हैं या नहीं। तो अब ये है कि अगर आप किसी पॉलिसी को ओन करते हैं ना, तो आप उसको ओपनली ओन करें कि हाँ ये उसामा बिन लादेन जो है ये शहीद है और ये हमारा हीरो है और रहा है, और ये तालिबान भी हमारे हीरो। लेकिन फिर इसको ओन करें, क्योंकि कौमें जो होती है ना वो उस वक्त लीड करती हैं जब वो अपनी पॉलिसीज को क्लियर कट, क्योंकि इसी तालिबानाइजेशन के खिलाफ जंग में आप जब लोगों को पकड़ते हैं, सवात में ड्रामा रचाते हैं या फाटा में, और लोगों के घर बार उजड़ते हैं, और फिर उसमें तो आप इस बुनियाद पे करते हैं, उसके लिए लॉजिक ये देते हैं कि आप जो है वहां पे तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, चाहे वजीरिस्तान हो चाहे फाटा हो। तो फिर आपने इतने फौजी कत्ल करवाए, इतने पुलिस वाले शहीद करवाए, आपने अपनी आवाम के घर बार उजाड़े, आपने F-16 यूज करके वो लोगों पे बम्बारियां की, तो आप उस चीज को किस तरह पे इंटरनेशनल लेवल पे आप वो कर सकते हैं, मतलब उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये चीजें कोई भी मतलब मौलवी जो होता है ना, आप देखें मलेशिया में भी मौलवी होते हैं, उसके पूरी इस्लामी इस वक्त मुसलमानों के पाकिस्तान के अलावा 50 से ज्यादा ममालिक हैं, वहां पे भी हैं। लेकिन इस्लाम को एज ए टूल यूज करना, एज ए पॉलिटिकल टूल यूज करना, इसको डंडे के तौर पे इसको हथियार बनाना, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। और जब रियासत करती है तो फिर जब तालिबान वगैरह या मौलाना फजल रहमान वो उनसे खफा हो जाता है, तो वो पंजाब के सबसे पुरअमन इस्लाम को, जहाँ पे सिर्फ नाते पढ़ी जाती थी, जहाँ पे नक्शबंदी और ये तारुल कादरी और ये सिलसिले थे, पीर फकीर वाले लोग थे, उनको भी डंडे थमा देते हैं। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल हैं, ये हमारा अपना मुल्क है। और आखिरी बात मैं सिर्फ यह पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जब ये जस्टिफिकेशन, जब लॉजिक की बात आती है ना, हम जब बात करते हैं तो वो विशेष पे नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक दिन मुझे दोस्त ने, मैं भी चूंकि आजकल यूके में होता हूँ, PhD कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ और जर्नलिज्म पढ़ाता रहा हूँ, मीडिया, तो ये प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है ये मैं पढ़ाता हूँ। हाउ डज प्रोपेगेंडा वर्क, ये अमेरिका कैसे करता है, चैनल्स कैसे करते हैं, इसके टेक्निक्स क्या है, तो ये रिसर्च की चीजें हैं। लेकिन ये बात करना कि मतलब ये बंदा चूंकि ये मुल्क से बाहर है या किसी इदारे को या किसी बंदे को ये क्रिटिसाइज कर रहा है, ये कम मुहिब वतन है। दूसरा, मुहिब वतन का के लिए अभी तक न आईन में न कानून में कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि ये बंदा फौजी है तो ये ज्यादा मुहिब वतन है, ये प्रोफेसर है या ये डॉक्टर है तो ये कम मुहिब वतन है, या ये मुल्क से, पाकिस्तानी मुल्क से किसी हालात की वजह से या इल्म की वजह से के लिए गया, तालीम के लिए, या फिर अपने हालात की वजह से बाहर गए तो कम मुहिब वतन है। तो मतलब आप मुझे कोई भी इस पूरे महफिल में मुझे ये प्रूव नहीं कर सकता कि मैं जनरल बाजवा से, इमरान खान से या नवाज शरीफ से
किसी भी लिहाज से कम मुहिब वतन हूँ। इसी तरह ये सब भी एक दूसरे से कम मुहिब वतन नहीं है। मसला सिर्फ पॉलिसीज का या इख्तिलाफ राय का है, और वो हम रखेंगे भी, और वो हमारा और हम सबका बुनियादी हक है। तो आप चीजों को पर्सनली न लें, आप चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख लें कि अच्छा अगर ब्लास्फेमी वकास को राय के खिलाफ चलती है तो इसके कल मेरे बेटे भी विक्टिम होंगे, कल हमारे बच्चे भी एक दूसरे को मारेंगे, वो बैंक मैनेजर भी मारेंगे। और इसके सबसे ज्यादा जब आप 1500 केसेस पे जब मैं रिसर्च कर रहा तो मुझे हैरत हुई इस बात पे हुई कि इसके सबसे ज्यादा गुस्ताख जो है वो पंजाब में निकले और मुसलमान थे, मतलब मेजॉरिटी उन केसेस की मुसलमान थे। तो अब आप मुझे बता रहे कि वो गुस्ताख पंजाब में क्यों हुए? क्योंकि जब आप गुस्ताखी की सियासत खेलते हैं फिर आपको गुस्ताख बनाना पड़ता है। यू हैव टू क्रिएट अ ब्लास्फेमर। दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क। जब से जो टीएलपी आई है पंजाब में कितने वाकयात उसमें मल्टीप्लिकेशन हुई। अब आप देख लीजिए इस्लाम की हिस्ट्री वो 712 से आप उसको 1947 तक और उसके बाद 2019 या 2020 तक देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी जब से सिंध में या इंडिया पाकिस्तान में ये इस्लाम आया था उसमें आपको कभी भी नहीं मिलता कि वहाँ पे ब्लास्फेमी हुई हो या मुसलमानों ने एक दूसरे को मारा हो। इस तरह कभी भी आपको तारीख में वाकयात नहीं मिलते। ये जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ पे एक ब्लास्फेमी कानून बनाया और उन्होंने किस बुनियाद पे बनाया था? उन्होंने इस बुनियाद पे बनाया था कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो अक़वाम है, मज़ाहिब के लोग हैं, ताकि उनको प्रोटेक्ट करे। हिंदू, सिख, ईसाई ये सारे एक साथ रहते थे, मुसलमान, पारसी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग। तो उसको लिए बनाया था। उसके बाद जब उन्होंने वो कानून बनाया था तो उससे लेके 1947 तक यानी पार्टीशन तक टोटल 7-8 वाकयात हुए थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान जब बना तो 1980s तक 15 वाकयात हुए थे। लेकिन जब जनरल जिया आया और उसने और अमेरिका ने वो इस्लाम को यूज किया और उसके खिलाफ उसको मिलिटराइज किया, फिर वो सारे कवानीन ले आए और रिलीजन को एज ए टूल यूज करना शुरू किया अपने मुखालिफिन के खिलाफ, लेफ्टिस्ट के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, प्रोग्रेसिव्स के खिलाफ। तो उसके बाद जो है 1980 से लेके 2017 तक 1500 वाकयात हुए। तो फिर आप अंदाजा आपको ये चीजें जब इस तरह एनालिसिस आप करेंगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन ये चंद वाकयात आप पर्सनल वो न करें। जी जिया भाई आपने बहुत अच्छी बात की और मुख्तसरन ये है कि जो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि मुकद्दस गाय को अपना मुकद्दस का टाइटल वापस लेना होगा और उसके साथ साथ हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट और वफादारी के सर्टिफिकेट भी देना बंद करना होगा। और जो भी पाकिस्तानी हैं वो दियार गैर में हो या वतन में हो, उनकी हुब्बुल वतनी पे शक करना या उस शक करने का लाइसेंस किसी को भी देना जो है वो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि आइन के भी खिलाफ है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म करें। जी बिल्कुल, काफी टाइम हो गया। और एक मिनट ऐसा ना करें, अहमद गुराया को यहाँ बुला लेते हैं, अपनी आदमी को खत्म कर देते हैं। आप मरियम जी फिर बात करेंगे। हम लोग असल में 6-7 घंटे से बैठे हुए थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फौज बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। एक सेकंड ज़िया साहब, आपसे मैं बात कह दूं कि आप कह रहे थे ना कि ये वाली चीजें इधर ये दुनिया में कहीं नहीं होती। आप इंडिया में देखें, वहाँ पे जय श्री राम के पीछे और गाय के पीछे कैसे मुसलमानों को लिंच करते हैं। आप सिर्फ वो देख लें। मैं नहीं कह रही यहाँ पे जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो सोसाइटीज होती है ना, जो सोसाइटीज होती हैं तो उनमें क्राइम्स भी होते हैं, उनमें बहुत सी चीजें होती हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू नो कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। सिर्फ आप पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं ना, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पे ये चीज कुछ ज्यादा मौलवी ने पकड़ लिया है, विच इज रॉन्ग। आई डू नॉट अग्री विद दिस। लेकिन आप इंडिया में कितना हो रहा है और उसके बारे में कोई बोलता भी नहीं है। इवन अहमद गुराया जो है ये नहीं बोलते, मतलब यू नो ही शुड बी स्पीकिंग अबाउट इट, ताकि ये मुसलमानों को वहाँ पे लिंच करते हैं, उनको मारते हैं, सबके सामने वीडियोस अपलोड करते हैं। नहीं इंशाल्लाह अहमद को मैं वॉच करूँ। मरियम साहिबा, ये जो इंडिया में जो हो रहा है ना वो एग्जैक्टली पाकिस्तान का मसला है। जिस तरह पाकिस्तान में रिलीजन को यूज किया गया और मोदी इंडिया में आया तो एक सेकुलर इंडिया को उसने जो है वो हिंदू नेशनलिस्ट इंडिया बनाया, तो वहाँ पे भी लिंचिंग शुरू हुई क्योंकि वहाँ पे भी मजहब को इस्तेमाल करना। इंडिया पाकिस्तान बन रहा है। हाँ, इंडिया भी अभी बनेगा पाकिस्तान, बन रहा है पुराना वाला। भारत बनेगा पाकिस्तान, भारत बन रहा है पाकिस्तान। लेकिन जी लेकिन सर मैं एक छोटी सी बात, प्लीज मैं एक छोटी सी बात कल या परसों जिया साहब ने ऑलरेडी साथ आए
तो फिर हम बात करेंगे। नहीं, आप यही बिल्कुल वाला आएं। हमें जारी रखेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां। अहमद, आप मुझे प्लीज डीएम कर दीजिएगा, आपने कल जब भी स्पेस होगी ना तो आई विल कम। आप मुझे एक डीएम कर दें क्योंकि आपका डीएम ओपन नहीं है। अगर आप मुझे एक दफा डीएम कर देंगे फिर मेरा ओपन है सर, मेरा ओपन है डीएम। यू जस्ट अच्छा, मैंने अभी चेक किया, मुझे नजर नहीं आया आपका डीएम, आपका सिर्फ फॉलोअर। अच्छा, अब ओपन है, ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, मरियम जी हमारी बहन है और बहुत अच्छा बोलती हैं। बस जो तहफ़्फ़ुज़ात मरियम जी के हैं वही हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम सिर्फ जो रियल इश्यूज हैं ज़ुरैया वो साहब। एड्रेस करना चाहते हैं। जी हसन ज़ुरैया भाई, साहब, आप टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद पढ़ा करें, टाइम्स ऑफ कराची पढ़ा करें, ये जितनी आईएसआई ने वेबसाइट चला रही है ना वो पढ़ा करें, सब अच्छा अच्छा पाकिस्तान में नजर आएगा, बेहतरीन मैं तो पाकिस्तान पढ़ती नजर नहीं, मैं आएगा। पाकिस्तान की ना न्यूज देखती हूँ ना मैं पाकिस्तान की और दूसरी बात ये मैं बाहर की पढ़ती हूँ न्यूज, मैं बाहर का देखती हूँ। तो दूसरी बात ये कि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ ना, मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ की बुराइयों को हाईलाइट करना, वहाँ के मसाइल को हाईलाइट करना ताकि वो हल हो सके, वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे किसी दूसरे तीसरे चौथे मुल्क का मसला मैं उस वक्त देखूंगा जब मेरे अपने मसले हल हो चुके होंगे। ठीक है ना, इंडिया में आप नहीं बोलते, इसराइल में नहीं बोलते, फलाना नहीं बोलते। अरे मेरे अपने मुल्क में यार 50,000 मसले पड़े हुए, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा कब्जा ग्रुप है वो जर्नैलों का, वो पूरा मेरे मुल्क पे कब्जा करके बैठा हुआ है। अब वो बच्चों को एमेच्योर फिल्म फेस्टिवल, भाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर जो एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है बंद कर दो ना, अगर आईएसपीआर ने फिल्म फेस्टिवल्स करने हैं तो। आप यहाँ पे ठीक है, कह रहे हैं करप्शन, तो पूरी दुनिया में करप्शन नहीं कंट्रोल हो रही। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में कंट्रोल करे, आप कह रहे हैं यहाँ पे टमाटर 5 रुपए से 10 रुपए हो गए, तो पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर चल रही है। तो आपने लगता है टमाटर खरीदे नहीं है, मुझे लगता है आपने टमाटर खरीदे नहीं है। We are globally connected. We are not an isolated country. जी, तो टमाटर हम क्या बरतानिया से मंगवाते हैं? World. We are not citizens of only Pakistan. मेरी बहन, हमने इकट्ठी स्पेस करनी है और मैंने आपसे जो आप मीडिया देखती है, मैंने सारे एक सेकंड मुझे एक आधे मिनट का दीजिएगा प्लीज। डॉक्टर भाई जब आप स्पेस बनाए मुझे भी डीएम कर दीजिएगा, मैं भी। हाँ, मुझे भी कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइएगा, बरतानिया में 1 लीटर दूध का डब्बा कितने का है इस वक्त? प्लीज आप मुझे सिर्फ ये बता सकते हैं। जी, 1 गैलन जो है वो 1.49 पाउंड का है जी, यानी 2 पाउंड का आपको, हाँ 2 पाउंड का आपको 4 लीटर मिलता है, यानी 100 रुपए लीटर दूध है। ठीक है सर, 100 रुपए लीटर दूध है, 1.5 पाउंड का, सॉरी 1.5 पाउंड का सर, वो 1.94 कह रहे हैं ना? 49। ठीक है जी, वहाँ पे 100 रुपए लीटर है, यहाँ पे 80 एक सेकंड, अगर इंग्लैंड में 100 रुपए लीटर है, इंग्लैंड में मैं आपको कंफर्म करके एक मिनट मरियम साहब, दूसरे 1.49 सर वो डब्बे के, एक मिनट मरियम साहब, अपने आप माशाल्लाह बहुत लगता है अमीर है, अपनी खरीदारी खुद भी नहीं करती है, लेकिन दूसरे की भी सुन लिया करें, इस तरह ना किया, दूसरे की सुन लेना। आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 1.94 तकरीबन 1.49 यानी 300 रुपए का 4 लीटर दूध है, 75 रुपए लीटर बरतानिया में दूध है। पाकिस्तान में दूध के क्या रेट है अब आप मुझे बताइए, आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि आप दूध खरीदती नहीं होंगी। यहाँ पे मैडम अपनी 120 रुपए खुला हुआ दूध, डब्बे का दूध नहीं, कल मैंने नेस्विटा खरीदा 175 रुपए का डब्बा, मैंने खरीदा 175 रुपए का डब्बा। आप गाय का दूध पिए ना, आपने, आप क्यों बार का नेस्विटा? अब आप मुझे बताएंगे कि मैं दूध कौन सा लूं, अब ये बात क्या करें, आपको नहीं पता IMF का हम मकरूज है, सड़कें हमारी उनके हवाले हैं, हमारी हर चीज उनके हवाले है, आपको नहीं पता? इसीलिए हमने 1300 अरब रुपए आर्मी को डायरेक्टली दिए हैं और इन टोटल पेंशन मिला के 2200 अरब रुपए आर्मी को दे रहे हैं हम। आर्मी वालों के लिए पैसे हैं। ये तो दूध तो टमाटर की तो बात आप जी भी करते हैं ना। तो मैंने लिए, क्या कर दिया मैंने लिए? क्यों कर रहे? मेरी बहन मरियम, आप मुझे सिर्फ सच्ची बताएं, आप बचत करती हैं, आप रोज रोजा रखती हैं और IMF के कर्जे की वजह से क्या आप खुद भी बचत करती हैं? आपने गाड़ी बेच दी हुई है कि अभी तक नहीं? बिल्कुल नहीं बेची। हमारे मतलब आप खुद सारे मजे कर रही है और मेरे भाई को कह रही है सस्ता दूध पियो, ये तो जाती है ना। क्योंकि वो दूध की बात कर रहे हैं, दूध मैं तो गाय का दूध पीती हूँ, मैं गाय का ही होता है मेरी बहन। मैं देसी घी खाती हूँ, मैं ये चीजें खाती हूँ, मैं गोरों की चीजों पे तो आई डू नॉट बिलीव इन दैट। इतनी अय्याशी, आप 1000 रुपए किलो देसी घी खाती हो, पैसा IMF का कर्जा उतारने में इस्तेमाल हो सकता है मेरी बहन। ये बताइए यार, जिन चोरों ने हमारा हक खाया है, हमारे मरियम जी तो ड्राइव अपने घोड़ों को खिलाया। मैंने आपको अभी आप आलू प्याज टमाटर की, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ मरियम साहब, सुन लीजिए। आप बात कहाँ से कर रहे हैं भाई? मरियम, आप कह रही है घोड़ों को मुरब्बे खिलाते थे। कसम उठा के मैं कहता हूं कि हम हर साल, हमने जो अपने घर की हिफाजत के लिए कुत्ता रखा हुआ है, हम उन कुत्तों पे 2200 अरब रुपया साल का खर्च करते हैं। हम बड़ी अय्याश कौम है।
Exactly. This is true. This is true. This is true. ये अवान साहब कहना चाह रहे हैं, उनसे बात कर लें. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैडम आपकी हर स्पेस में लड़ाई क्यों हो जाती है? एंड पे आके आप कोई बात थोड़ी सुना भी करें, कुछ बर्दाश्त भी अपने अंदर पैदा करें. नहीं, इसलिए होती है हौसले से बात सुना करें. मैं जाती हूँ जहाँ पे नून लीगी होते हैं, मैं उस स्पेस में जाती हूँ जहाँ इंडियंस होते हैं, मैं उस स्पेस में जाती हूँ. और मुसलसल आपको बोलने का एक आप जो है वो वर्बल डायरिया जो आपने हर बात में बोलना ही बोलना है. जब वो बात करते हैं मैं अपनी राय देती हूँ उनको, मैं अपनी बात बताती हूँ. अपनी राय जो है ना वो हर जगह देने की जरूरत नहीं होती. एक अच्छी खासी स्पेस चल रही थी, उसमें आपको फजूल बोलने की जरूरत नहीं है. इतनी अच्छी डॉक्टर साहब की यहाँ पे बातें हुई थी, आपने आके अपनी वही टाउन टाउन शुरू कर दी जो हमेशा. यार अवान साहब नहीं, प्लीज ऐसे ना करें. अवान साहब ऐसे ना करें. बात ये है कि उनको बोलने का अवान भाई वो हमारी बहन है, ऐसी बात नहीं है. और मेरी स्पेस में वो आती है. डॉक्टर साहब की सुननी है. मैं तो भी आई. जी डॉक्टर जी. मरियम यू आर ग्रेट. लेकिन बस मरियम, मेरी एक ही गुजारिश है कि मेरी बहन आप खुद भी बचत किया करें, गाड़ी बेच दें, आप एक घोड़ा ले लें, पुर्तगाल वाला, सीरियस, ठीक है. आप मेरी राय मानने के आप मरियम जी लाइटर नोट में बात हो रही है. आप भी घोड़ा ले, मैं भी घोड़ा लेती हूँ, ठीक है. लाइटर नोट चल रहा है. अच्छा मरियम मेरी बहन बचत किया करें. हमने IMF का कर्जा उतारना है और आप अपने घर में वो जो है ना बड़ा सर आपने टीवी रखा हुआ है LCD, बेचे एक छोटा सा टीवी लें, LED वाला छोटा सा जो कि बिजली कम खाए. नहीं, एक सेकंड. और एयरवाइज का देखें. और मेरी बहन, चोर बैठे हुए यहाँ पे, जो चोर बाहर गए हुए हैं, हम उनसे ना निकालें जिन्होंने हमारा पैसा खाया है. जिनके पनामा लीक्स आई है, पूरी दुनिया में आई है उनकी. पक्का वादा मेरा आपका पक्का वादा मरियम, हम दोनों फिर हम अपने आप को भी हम कट करें. ये आप क्या बात कर रहे हैं मरियम? मेरा आपसे वादा है कि इस पे भी हम एक स्पेस करेंगे, आपके साथ हमारी खूब जमेगी. आप जितनी मर्जी करें, मुझे बुलाएं, मुझे एज पाकिस्तानी आई विल डिफेंड ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है. नहीं मरियम जी देखें, आसिम बाजवा जो है वो जो उन्होंने पैसे लूटे हैं वो वापस आने चाहिए कि नहीं? उन्होंने पैसे, उनकी फैमिली सारी अमेरिका में, उनकी सारी फैमिली अमेरिका में है, उनके बिजनेसेस है. अच्छा गुराया साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा. मैं घंटे से इंतजार कर रहा हूँ. कोई अमीर बंदा आर्मी में चला जाए और वो सर्व करे, आप ये कहेंगे, एक मिनट कि जी वो अपने सारे खानदान के पैसे ले आए. जिस आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जो हूँ कर्ज उतारूं. मरियम बहन, मैंने स्टोरी पढ़ी है. उनको छितर ना मारे. मरियम बहन, फारूक जेबा के नाम पे है वो बिजनेस. मेरी बहन वो फारूक जेबा के नाम पे, मिसेस बाजवा के नाम पे बिजनेस है. अच्छा प्रूफ. अच्छा ये फाइन भाई मुझे नहीं इतना पता. आप factfocus.com खोलें, factfocus.com पे कंपनी का ओनरशिप डॉक्यूमेंट खोलें, उसमें सारे शेयर होल्डर्स का शेयर अमाउंट का उनके अपने दस्तखत किए हुए ओरिजिनल कागज लगाए हैं फैक्ट फोकस वालों ने. आपने मुझे लगता है स्टोरी भी नहीं अभी तक पढ़ी. आप मीडिया तो बड़ा पढ़ती हैं, आपको सबूत मिलेगा. मैं पाकिस्तान की नहीं पढ़ती, मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो है क्या, हमें नहीं पता क्या है. अच्छा मुझे ये बताएं कि आसिम बाजवा ने खुद साइन किए हैं. मिसेस आसिम बाजवा वो सारा नेगेटिव जो पैसे देता है उसका वो करते हैं, ठीक है ना. उसी के वो मतलब हामिद मीर ये वो अब सारा हम देख रहे होते हैं. तो फिर पैसे मरियम साहब आप कहती हैं बाजवा साहब के पैसे नहीं आने चाहिए. कोई भी नहीं देखता. सारी बात बाजवा साहब के पैसे नहीं आने चाहिए. मेरी बहन दीजिएगा स्पेस. $100 मिलियन की ओनरशिप के ऊपर मिसेस बाजवा के साइन मौजूद हैं और वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में factfocus.com पे मौजूद है. एक फौजी की बीवी जो कि फौजी से शादी करने से पहले रेडियो स्कर्दू में रेडियो होस्ट थी, ठीक है, RJ थी. वो आज अमेरिका में एक बिजनेस एम्पायर की मालिक है. ना उसकी इनहेरिटेंस है, ना उसका कोई बिजनेस एक्सपीरियंस है. वो आज भी एक हाउसवाइफ है और वो कागजों में $100 मिलियन की 1/6 शेयर होल्डर है. व्हाट इज सोर्स ऑफ हर इनकम? अच्छा आप मुझे ना ये लिंक शेयर कर दीजिएगा प्लीज DM में. पहली बात. दूसरी बात ये कि चले ठीक है ये आर्मी का ये उन्होंने ऐसे किया. आप मुझे ये बताएं कि जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज और ये सारों ने जो किया है सारे चोर हैं. मैं आपके साथ हूँ, वापस आना चाहिए अगर आप मामले का पैसा साथ वापस लाएं. आप मुझे बताएं ना, आप आर्मी के एक बंदे की बीवी का है, आप जस्टिस फाइज ईसा की बीवी के ऊपर क्या है, वो कोर्ट्स तक गई है, वो क्यों गई है? तो हमारे यहाँ पे ना सब इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे ऐसे लोग आए हुए हैं. यही इमरान खान कहता है कि मेरिट पे हर चीज होनी चाहिए. जी बिल्कुल. कराची में गुजर नाला गिरा लो और बनी गाला जो है ना बचा लो. गुजर नाला गिरा लो, बनी नाला बचा लो. वाह मेरी बहन इस पे ज़्यादा स्पेस होगी, करप्शन पे ज़्यादा स्पेस होगी. मैं आपके साथ हूँ. नवाज शरीफ को वापस लाना चाहिए. तो है
नवाज शरीफ को वापस लेकिन मरीम नवाज भी तो है, हर वो बंदा की वाइफ भी तो है, हर वो बंदा जिसने ऑफशोर कंपनी बनाई है वो हरामजादा है, उसने इस मुल्क का पैसा लूटा है और उसको उल्टा लटका के निकाला जाना चाहिए। और जस्ट ऐड कर दूं, ऑफशोर कंपनी अलीमा खान की भी है, ऑफशोर कंपनी अलीमा खान की भी है, इमरान खान की भी है और नवाज शरीफ की भी है। पता नहीं दुनिया में तो नाम इनका ही आया था, पनामा लीक्स में तो नवाज शरीफ और उनका ही आया था, ज्यादा तो उन्हीं का है। यूं तो फिर फजल रहमान का भी निकल आती है बातें। मरियम जी वो हर कोई ऑफशोर बना लेता है ना, मुझे नहीं पता उसका हलीमा का है कि नहीं है, बट सेइंग इज दैट कि जो उनका है, जो नवाज शरीफ का और जरदारी का और बेनजीर का है, वी हैव लिव्ड दैट एंड वी नो कैसे हमारे मुल्क को कहां। मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, बाजवे का पैसा वापस आना चाहिए, आसिम बाजवे का, इंक्लूडिंग मुशर्रफ, आसिम बाजवे का लूटा हुआ पैसा वापस आना चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे आप सेंड करें, आई विल स्टडी दैट। अच्छा मरियम जी एक मिनट, ये आपको डॉक्टर साहब कुछ एड्रेस करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, राजू साहब। जी मैं बिल्कुल ऐड पूछना चाह रहा था इसमें कि हलीमा बाजी का भी इनखला जो है वो शामिल होगा, यानी जो उन्होंने साइफन ऑफ किए हैं पैसे और बाकी लोगों ने भी। सिर्फ इतनी सी गुस्ताखी करना चाह रहा था पूछने की। ये हलीमा बाजी ने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की या बाद में की है? जी वो फरमाती है मैंने वो स्लाइम मशीन चला के वो सारे पैसे इकट्ठे किए हैं। ये उनके अपने ये कब किया भाई, ये कब किया है, ये कब किया? तो जब अमेरिका शौकत खानम के बाद की है, यहाँ पे जो भी पैसा है शौकत खानम के बाद का है, लोगों से भीख मांग के जमा किया हुआ पैसा है ये सारा। वो इशू जब आया था, जब ये प्रॉपर्टी मंजराम पे आई थी, बेनजीर इनकम सपोर्ट में ज़कात अगर खा जाए और मिनिस्टरों के घरों के खर्चे चले। देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान उस वक्त किसी पोजीशन पे नहीं था, ही वाज अ नॉर्मल पाकिस्तानी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो जजेस, जो प्राइम मिनिस्टर ऑन ओथ रह चुके हुए, जो ओकामा लेके दूसरों के मुलाजिम हमारे ऊपर जो थोपे हुए थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। इमरान खान was not a judge, he was not a prime minister, he was nobody। मैं मरियम आपके साथ हूँ। मैं इमरान खान की सरकारी हैसियत बताऊँ आपको, मरियम साहबा इमरान खान की सरकारी हैसियत बताऊँ आपको मैं। हसन भाई एक मिनट डॉक्टर साहब को बात पूरी करने था। हसन भाई जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा करना चाह रहा था कि जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करते हैं तो वो पॉलिटिकल बेसिकली पब्लिक ऑफिस में आ जाते हैं, यानी आज से 22 साल पीछे और फंड्स भी जमा किया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा भी जमा किया है। जी अब अगर ये कहा जाए कि जी वो पब्लिक डोमेन में नहीं थे और पब्लिक ओथ में नहीं थे, या मिलिट्री को इससे निकाल दिया, जब ये आपने ओथ की बात की कि ब्यूरोक्रेट्स और जो जजेस हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसमें ओथ में होते हैं, इसी तरह मिलिट्री भी ओथ में होती है, इसी तरह बाकी ब्यूरोक्रेसी भी ओथ में होती है। देखिए ओथ का हमने जो हाल इमरान खान तो नहीं था सर, इमरान खान था, मैं आपको बताता हूँ की थी, तो एक एफिडेविट जमा करवाया गया था कि मैं किसी किस्म के पब्लिक एक्सचेकर को मिसयूज नहीं करूंगा। 1995 नहीं 1996 अप्रैल 96 में बनी थी पार्टी, अप्रैल 96 में प्राइम मिनिस्टर ना 26 अप्रैल 1996। मरियम साहब, डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट दीजिएगा। नवाज शरीफ की बात तो नहीं आ रही जो पूरी दुनिया में पनामा लीक्स हुई। आप लोग वो जो उनके मरीम साहबा पनामा लीक नहीं, इमरान खान का जरदारी के उस पे आप लोग नहीं आ रहे। मैं मरियम बहन आपके साथ एक सेकंड आप टारगेट करें इमरान खान को, ये तो फिर ज्यादा। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं, मैं आपके साथ हूँ। सवाल ये है कि मरियम सवाल पूछना है मुझे, क्या आपको पता है कि पनामा लीक्स में अलीम खान का नाम था? क्या आपको पता है मरियम, सच्ची बताइएगा। हाँ जी मुझे पता है, वो इस टाइम पता है, उसमें और भी जमात इस्लामी का भी नाम था, और बहुत लोगों का अच्छा नाम था। अलीम खान जमात इस्लामी नहीं है, पीटीआई के हैं। अच्छा अलीम खान इस टाइम क्या कर रहे हैं? मैं वैसे बात कर रही कि उनका भी नाम था। मुशर्रफ के तमाम करप्ट मिनिस्टर्स इस वक्त इमरान खान की काबीना में वजीर हैं। अलीम खान का ऑफशोर कंपनी नवाज शरीफ के साथ बराबर उसी कंपनी के अंदर खुली हुई थी। अलीम खान को टिकट दिया गया, उसको वजीर बनाया गया, उसको सारा किया गया। अगर इमरान खान ने नवाज शरीफ को लंदन से पकड़ना है, आप लोग कुछ बेगैरत की गर्दन पकड़ोगे, ये तुमने भी अपने साथ वाली कुर्सी पे जो पनामा वाले चोर बिठाए, पहले इनको तो पकड़ ले। अब कुछ को पकड़ दी, घर में तो चोर बैठे हुए, उन पर पहले हम ऊपर वालों को ना पकड़े, पहले ऊपर वालों को ना पकड़े जिन्होंने हमारे मुल्क का पैसा लूट के तो ऑफशोर कंपनी से भेजा। तो मेरी बहन ये भी वही है, उनको ना पकड़े जिन्होंने स्विस कॉटेजेस बनाए। नहीं पहले तो बड़े चोर को हाथ डालना चाहिए। मेरी बहन बड़े चोर हैं सारे, ये मुशर्रफ और अहमद भाई एक सवाल अहमद भाई मुझे एक सवाल प्लीज, माफ कर देते। मरियम साहब एक सवाल कर सकता हूँ?
मरियम साहब जी करें, हसन भाई सवाल करें, हसन भाई सवाल करें। मरियम साहब मुझे एक सवाल का प्लीज जवाब दे दें, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज, कि कोई भी अगर वजीर आजम या सदर जो भी जरदारी साहब ने चोरी की होगी, पैसे बनाए होंगे, आप बता रही हैं जैसे कि, तो क्या वो वजीर खजाना की मदद के बगैर, हाँ या ना बताइए, वजीर खजाना की मदद के बगैर करप्शन हो सकती है क्या? हाँ या ना? क्या 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 करप्शन किसकी? करप्शन किसी भी हुकूमत में सदर वजीर आजम लेवल पे वजीर खजाना की मदद के बगैर हो सकती है क्या? सारे ही चोर होते हैं ना। नहीं पूछ रहा हूँ ना, वजीर खजाना की मदद के बगैर करप्शन हो सकती है सदर वजीर आजम लेवल पे या कहीं? हाँ या ना में जवाब। मैं कह रही हूँ सारे ही चोर होते हैं। नहीं पूछ रहा हूँ, वजीर खजाना की मदद के बगैर वजीर आजम या सदर करप्शन कर सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो जो ब्लैक मनी होती है, जो मनी नहीं हाँ या ना में जवाब। सर वजीर खजाना होता है ना मुल्क, आपने कहा रियासत का पैसा, बट व्हाट आई एम मरियम साहिबा एक सेकंड ना, रियासत का पैसा क्या होती है? ब्लैक मनी, पब्लिक एक्सचेकर मनी, पता है आपको क्या होती है? कसिनोज में पैसा, एक सेकंड यहाँ से जाके कसिनोज में आप जुए खेलना, आप इनकी बीवी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रही हैं? मैं आपसे पूछ के रहा हूँ, मैं आपसे पूछ के रहा हूँ। आप एक इंसान को टारगेट कर रहे हैं तो फिर मैं एक इंसान को टारगेट नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो नवाज शरीफ और जरदारी की बात कर रहा है। हम इन सबको, भाई मैं नवाज शरीफ जरदारी की बात कर रहा हूँ, मैं तो आपके साथ बात कर रहा हूँ। अरे मछली को बड़ी मगरमच्छ को पकड़, मैं आपसे बड़े मछली, मैं जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े करप्ट आदमी है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब वो सदर थे और गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, बाद में कुछ अरसे के लिए राजा, इन सब ने जो पैसा कमाया, जो मुल्क का पैसा लूटा और ये सब कुछ किया, तो ये करप्शन क्या वजीर खजाना की मदद के बगैर हो सकती है? मुल्क का पैसा लूटा ना, ब्लैक मनी तो सरकारी पैसा नहीं होता ना, ब्लैक मनी तो दूसरे तरीके से आती है। तो जो सरकार का पैसा था, जो आवाम का खजाना लूट के किया, सब कुछ हो जाता है, सब तो अच्छा आप ये कह रही हैं कि वजीर खजाना इन्वॉल्व नहीं थे, सदर और वज़ीर आज़म ने ऊपर ऊपर करप्शन कर लिए, कह रही हैं आप? नहीं, मैं कह रही हूँ सभी करते थे, मैंने आपको पहले कहा सब मिलके ही करते थे। अच्छा मिलके करते थे, थैंक यू। तो उस वक्त का जो वजीर खजाना था, जिसकी मदद से ये सारी करप्शन हुई, उसको इमरान खान ने वजीर खजाना क्यों लगाया? भाई मुश्किल सवाल तो ना पूछे ना। इमरान खान वजीर खजाना, शौकत तरीन, आप किसकी बात? शौकत तरीन की बात? जी शौकत तरीन। तो इमरान खान क्या बात से, एक सेकंड, इमरान खान क्या बात से जाके किसी गोरे को लाके यहाँ पे वजीर? अब ये तो कोई जवाब नहीं हुआ मरियम जी। मतलब जो पीटीआई ज्वाइन कर ले उसकी करप्शन नहीं पकड़ी जाएगी, नवाज शरीफ को भी पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। यही करना ना, कोई एमक्यूएम का बंदा बीच में आ जाएगा, कोई मुशर्रफ का लॉयलिस्ट आ जाएगा, इलेक्टेबल्स आए, भाई सियासत आपकी मदद से होती है। और उसे लगाया, उसकी भी सबूत मुझे आप बताए ना कोई हो, ऐसे इल्जाम तो आप मेरे पे भी लगा देंगे। मतलब टॉक विद फैक्ट्स यार, कम ऑन, ऐसे तो बातें हमारे में तो ना भाई हसन साहब आपने बहुत ज्यादती की, आपने शौकत तरीन के ऊपर, वजीर खजाना के ऊपर बिला वजह इल्जाम लगा दिया बगैर फैक्ट्स के। कह दो तनाई भाई मुझे 5 सेकंड दें क्या? जी बोले वसीम भाई, बोले। लेकिन एक मिनट वसीम भाई, ये अपना फहीम भाई जो है ना काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज इनको बोलने थे 2 मिनट, फिर आप आ जाइए। चलो जी फहीम भाई। Assalamualaikum. First of all, lots of love and respect from अहमद गुराया। मैं जड़ावाला से हूँ, मेरा नाम है फहीम खान बलोच, और मैं ना तकरीबन घंटे से वेट कर रहा हूँ। मैंने कॉलेज भी जाना था, अभी नाश्ता करना है, अभी तैयार होना है, शावर लेना, सारा कुछ करना है, बस वेट कर रहा था कि बोलने का मौका मिले। तो अहमद भाई साहब ने जो भी बातें की हैं सारी बिल्कुल उन्होंने फैक्ट्स बयान किए हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं खुद भी एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज करने की कोशिश करता हूँ, और बाकी जितने भी मौलवी हजरात हैं सबको, लेकिन इस माशरे में बिल्कुल हर रोज धमकियां मिलती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई थ्रेट्स आ रहे होते हैं, इनबॉक्स में, डीएम में, ये चुप कर जाओ, ताकि फैमिली तक भी सपोर्ट नहीं करती। एंड वो कहती है कि ना बोलो ना बोलो ना बोलो, लेकिन सच बोलना इस सोसाइटी में बहुत ही मुश्किल है। बाकी ये जो आपने क्वेश्चन छोड़ा था ना, अमेरिकी इनकलाब के बाद क्या तालिबान, तो जिन को तालिबान का शौक है ना, तो उनको पाकिस्तान में आने दें। जब वो इन पे पाबंदियां लगाएंगे, जब वो खवातीन को बेल्ट से मारेंगे, तो इनको लग पता जाएगा, ये खुद ही पता लग जाएगा। बस जस्ट वेट एंड वॉच। तो बस मैंने जस्ट यही कहना था, मुझे कॉलेज भी जाना है, लेट हो रही है, तो इसलिए बस मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था। और मेरी तरफ से अहमद गुराया साहब को लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। We all love गुराया भाई, we all love। शुक्रिया फैज भाई। वसीम भाई आप बोलें, क्या कह रहे थे? जी बस मैं तो इकबाल ने गुराया साहब के लिए एक शेर कहा था काफी अरसा पहले, वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि गुराया है तो डॉलरों पे करता है भरोसा, मरियम है तो बेतेग भी लड़ती है सिपाही। मैं इनको हेड्स ऑफ करता हूँ। नॉर्मली एक आध गद्दारों के साथ तो ये लड़ जाती है
किसी ना किसी स्पेस में, मगर इतने गद्दारों के साथ और क्या शेरनी की तरह लड़ रही है। आई जस्ट हैट्स ऑफ टू यू मैडम, जस्ट कंटिन्यू योर वॉर। थैंक यू। भाई ये मेरी बहन है, जब भी मेरे पास आती है ना, मैं इनके मरियम हमारी बहन है। जी बिल्कुल मेरी बहन है, और जब भी ये मेरी स्पेस में आती है ना, मैं इनको लाजमी जो है माइक देता हूँ कि कहीं नाराज ना हो जाए, ये समझे कि तहरीक इंसाफ की मैं नहीं हूँ। तो मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है कि मैं मरियम जी को देखते देखते मैंने भी एयरवाइज देखना शुरू कर दिया। मैंने तो वोट भी नहीं दिया, मैंने तो वोट भी नहीं दिया, मैं उनकी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इमरान खान इज आवर प्राइम मिनिस्टर, आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई स्टैंड बाय हिम। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई हैव सीन द चेंजेस, सो दिस इज द थिंग। मैं तो पीटीआई की हूँ नहीं, आप मेरी टीएल चेक कर ले, कोई भी किसी पीटीआई के मिनिस्टर का मेरी बहन बिल्कुल जो आजकल के यूथ है ना, वो कभी नहीं मानते कि हम पीटीआई के हैं, उनको पता बहुत गालियां पड़ेंगी, इसलिए मैंने नहीं दिया वोट, मैं आपको बता रही हूँ, आई डिड नॉट। आपने वोट नहीं दिया, आपका वोट डल गया उनके हक में, फिक्र नहीं करें। क्या आपका वोट डल गया उनके हक में? बस मरियम जी एक थोड़ा सा हमारी दरख्वास्त है, मैं डालूंगी, मैं डालूंगी इंशाल्लाह, आगे हो के नहीं मरियम जी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप जो ना ये एयरवाइज देखना छोड़ दीजिए, नहीं तो हमें भी मजबूरन देखना पड़ जाएगा। अच्छा हमारे साथ ये अल्लाह की कसम मैं नहीं देखती पाकिस्तानी चैनल्स, आपको भाई समझ ली। मैं लाइटर नोट मरियम जी। अच्छा ये हमारे साथ फातिमा जी जो है ना, फातिमा जी आई है काफी देर से, और मिडल ईस्ट की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। फातिमा जी राय साहब नहीं, ये राय करना चाह रही है। हाँ जी बोले जी राय साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं वकास भाई सब? अस्सलाम वालेकुम। बस काफी देर से सुन रहा हूँ मैं। कैसे हैं सर? कि मैं टॉपिक मैंने देखा है तो इसलिए मैं रुक गया हूँ काफी देर से। मेरे कहा कोई भाई अच्छी सी गुफ्तगू करेंगे इस टॉपिक पे। वो टॉपिक खत्म हो गया था, हम लाइटर नोट पे लगे हुए थे, हमें मरियम के साथ। अब लाइटर नोट पे आप लतीफा सुनाए कोई? लतीफा तो मुझे नहीं आता सर जी। मैं वापस अपनी क्या कहते हैं उसको तमाशाई में बैठ जाता हूँ। नहीं आप बोले, गुफ्तगू जारी फरमाए। नहीं कोई ऐसी बात मैं क्या बोल सकता हूँ सर जी? जब आपने गुफ्तगू ऐसी रखी हुई है कि उसमें मेरा तजर्बा ही नहीं है। नहीं हम तो जरा ना वो लाइटर मोड में लतीफा में शुरू हुए थे कि ये ब्लास्फेमी और पॉलिटिक्स पे और डॉक्टर साहब की बहस को एंजॉय कर रहे थे, तो फिर मरियम आ गई। नहीं कोई भाई बात कर रहे थे। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, उन मरियम मोहतरमा की बात है। तो उससे पहले तालिबान की कोई बात, वो भी लाइक हम तो एक बाहर बैठे हुए हैं ना, असल में तो भुगतना तो बेचारों अफगानिस्तान वालों ने, अफगान अवाम ने भुगतना है। हम तो तज्जिए कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात, मरना थोड़ी है। अफगानिस्तान वालों ने भुगतना है, लेकिन उसमें रोल हमारे मतलब हमारा भी काफी रोल इसमें है। अगर हम उनको सपोर्ट करना छोड़ दें और उनको फ्री हैंड देना छोड़ दें तो कम से कम ये तो होगा कि वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को हम सपोर्ट नहीं करते और जो तालिबान है उनको गले लगाते हैं। दूसरे मुल्कों में जो तालिबान है, अब देखो हमारे तो यहाँ के आप ही बात करते हैं ये कि हमारे तालिबान ये है और इंडिया के तालिबान आरएसएस है। तो आरएसएस जब वो सपोर्ट करते हैं हम कहते हैं वो गुंडागर्दी है, लेकिन हम जब करते हैं ये ठीक है। ऐसे तो मतलब कि दुनिया हमें क्या कहेगी? अभी जो हुआ ये हाफिज सईद वाला पाकिस्तान के ऊपर जिन तालिबान का कब्जा है वो वर्दी पहनते हैं, फर्क है हमारे और दूसरी तरफ वाले तालिबान में। लेकिन एक ही चीज है ना, क्योंकि सपोर्ट जो देते हैं तो उन सपोर्ट तो फातिमा बहन आप मुझे एक बात बताएं कि 20 साल से वहाँ पे कौन गया हुआ था? अमेरिका गया हुआ था ना, नेटो गया हुआ था, इंडिया वहाँ पे होता है। कहाँ पे? ट्रम्प ने तो ओपनली कहा था ना कि हम यहाँ। मेरी बहन आपने अभी तक कश्मीर और फलस्तीन की मिसाल नहीं दी इस बात में। अभी आप वो छोड़े ना, अभी हम बात अफगानिस्तान की करें। भाई मैं पूरी दुनिया की बात कर सकती हूँ, आप मेरे से बात करें, लेकिन अभी वो बहन बात कर रही है कि तालिबान के उनकी कि हम वहाँ पे क्या करें। 20 साल पे जब बुश ने कहा था कि हम तुम लोगों पे इन्वेड कर रहे हैं और ये वॉर हुआ है, ये है वो है, जो भी कहा था, इधर यू आर विद अस और विदाउट अस व्हाटएवर, पूरी दुनिया जब वहाँ पे आई है अफगानिस्तान में, तो वो पाकिस्तान तो नहीं गया था ना, वो तो पूरी दुनिया की फौज थी वहाँ पे। तो उनको आप गाली दें, उनको पूछें, हम तो बल्कि पीस टॉक्स करें। जब पीस टॉक्स होती हैं तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफिरों के साथ सुलह हुदैबिया और भी काफी पीस टॉक्स की थी, आपको करनी पड़ती है। मैं बिल्कुल अपनी बहन के साथ, ये जो राय साहब जैसे लोग हैं ये गद्दार हैं, इनको कश्मीर और फलस्तीन नजर नहीं आता, इनको सोमालिया में पिसते हुए मुसलमान नजर नहीं आते, और इनको जा के अफगानिस्तान नजर आता है। ये बिल्कुल गलत लोग हैं। राय साहब क्या आपने कभी फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाई है? जी तो हम तो नहीं है बोलने का।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। सर मैं फलस्तीन और कश्मीर के लिए उस दिन आवाज उठाऊंगा जिस दिन इमरान खान साहब चीन के येवर मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे। चलो जी, चीन के मुसलमानों की आपको बहुत फिक्र पड़ी हुई है, क्यों? जी मेरे बॉर्डर पर हैं, मेरे बॉर्डर पर हैं, मेरे बॉर्डर पर हैं, उन्हीं की फिक्र पड़ी, मेरे बॉर्डर पर हैं भाई। क्या मेरे बॉर्डर पर? कौन से ये सिंजांग वाला बॉर्डर हमारे साथ हसन भाई, एक छोटा सा अभी थोड़ी देर पहले कोई इंटरव्यू में पढ़ रहा था, वो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर जो है मुईद, वो जो है मुईद, क्या नाम है उनके यार, मैं नाम वो जो अमेरिका से इंपोर्ट किया क्या है? जी वजीर खजाना मोइनी आ सकता, अमेरिका से सिक्योरिटी एडवाइजर आएगा भाई, याद रखिएगा। NSA मोईद यूसुफ। जी उससे पूछता है, करण थापड़ उससे पूछता है, कोई पुराना इंटरव्यू था लेकिन मैं किसी उस चील के पढ़ रहा था, तो उससे पूछता है, लिटरली उसने युगोर मुसलमानों के बारे में उसने कोई 12 दफा तो उसने बोला होगा इट्स नॉन इशू, वो उससे बार बार वहीं पे लाके उससे पूछता है कि भाई उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते हो? वो कहता है इट्स नॉन इशू, ये कोई इशू ही नहीं है, और यकीनन लिटरली उसने इस लफ्ज के अलावा और कोई बात ही नहीं की गई, ये कोई इशू ही नहीं है। भाई इमरान खान का उसने कोट किया, आपने खान साहब का नहीं सुना? जी इमरान खान को कोट किया ना, कहते हैं चीन हमें पैसे देता है, हम कैसे बोले? खान साहब ईमानदार हैं, खान नहीं हमें पैसे देता है, इससे पहले बोलेंगे वहाँ पे। इससे पहले उन्होंने एक और शोरली छोड़ी थी कि उसने इंटरव्यू दिया, उसको यूके का बहुत बड़ा उसकी मीडिया नेटवर्क था, मुझे नाम नहीं आ रहा, कोई फाइनेंशियल टाइम्स कुछ था इस तरह मेरे ख्याल से, तो उसने इंटरव्यू में पूछा कि खान साहब आप बताएं उस बारे में, तो खान साहब कहते हैं कि आई डोंट नो मच अबाउट दैट, अगर मुझे पता होता तो मैं बात करता, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, उइगुर्स के मसाइल पे हमारी बहन मरियम बहुत बोलती होंगी, क्योंकि ये इंसानी हकूक के मामले में मुनाफिकत की कायल नहीं होंगी। एक्चुअली मुझे जो उन्होंने बात की, मुझे वो बात नहीं समझ आई अफगानिस्तान के बारे में। आपने सुनना है तो फिर मैं बताऊं कि आप कौन? आप बताएं उइगुर के मसाइल पे कि वो बेचारों के साथ जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान को आवाज नहीं उठानी चाहिए, सिर्फ फलस्तीन के लिए उठानी चाहिए। मैं बताती हूँ, उइगर के मसाइल में जो हो रहा है ना, उइगर के जो मुस्लिम थे ना, वो तुर्कमेनिस्तान का पता आपको? तुर्कमेनिस्तान पता है? बिल्कुल जी। उनके वहाँ पे टेररिस्ट भी हैं, उनको अभी यूएन ने उनको टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया है, ठीक है? वो जो थे, ये सारे जो थे, ये अफगान जिहाद में जाके वहाँ पे लड़ते थे, ठीक है? ये एक्चुअली वो थे, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ईस्ट तुर्किस्तान है मरियम जी, वो तुर्कमेनिस्तान नहीं है, वो अलग से कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, और तुर्किस्तान की बात कर रहे हैं, और अभी उनको निकाल दिया है। और जहाँ तक आप बात करें उइगर मुस्लिम्स की, तो उइगर मुस्लिम इज नॉट इन द यूएन, पैलेस्टाइन एंड कश्मीर इश्यूज आर इन द यूएन, तो इसलिए हमें उइगर की बात नहीं करनी। वी ऑल नो जब वेस्ट जब प्रोपेगेंडा करता है, वो कैसे करता है, जैसे सीरियन आर्मी के खिलाफ कर रहे थे, और आईसिस और अलकायदा, इवन उसामा बिन लादेन को पहले वो सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है? पहले वो खुद यहाँ पे उसको भेजा था अफगान जहाद के लिए। तो अब बात ये होती है कि थोड़ा सा ना अकल भी बंदा यूज कर लेता है। ये उइगर का जो ड्रामा है ना, ये जो रचाया हुआ है, इंडिया बोलता है उइगर मुस्लिम्स के लिए, खुद मुसलमानों को वहाँ पे लिंच करता है, उनको मारता है, उनके खत्म कर रहा है उनको, और वो बोलता है कौन सी कंट्री? सारी बात आपकी मान ली, आप मुझे बताइए। अफगानिस्तान में जुल्म किया, जिन्होंने सीरिया में जुल्म किया, वो बोल रहे हैं भाई वो पहले उधर की तो बात करें, उधर की बात नहीं करते तो बात उइगर मुस्लिम की करते हैं। ये तो कोई मेरी बहन, वो तो सारे गंदे और मुनाफिक लोग हैं। उइगर मुस्लिम उनके अपने अंदर का ऐसे, तो यूं तो फिर हर मुल्क में ऐसे कोई अगर एक्सट्रीमिस्ट हो तो उनको करते हैं, उनको बिल्कुल उइगर सारे एक्सट्रीमिस्ट उनको उठाती भी है, एजेंसीज उनको उठाती भी है पूरी दुनिया में। आप ये कह रही हैं कि उइगर सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं और उनको इसलिए उठाया जा रहा है, वो सारे दहशतगर्द हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट उनको उठा रहे होंगे ना, एक सेकंड, जो एक्सट्रीमिस्ट उनको उठा रहे होंगे ना, इसलिए क्योंकि ये सारे वेस्टर्न सपोर्टेड हैं, वेस्ट इनको सपोर्ट करता है, जैसे हांगकांग को भी करते हैं। तो ये तो वो लड़ाई जब उन्होंने करनी होती है, जंगें करनी होती हैं, या किसी कंट्री को टारगेट करना होता है, या सैंक्शन करनी होती है, ऐसे ही करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमें नहीं मालूम, हमने फेस की है ये सारी चीजें। तो अब आप हमें कहते हैं कि हम ऐसी मुंह चुप के दूसरों की बातों पे यकीन करके तो हम कंडेम करें। हम कंडेम क्यों करें जबकि कोई सॉलिड कोई प्रूफ ही नहीं है? फेक कौन से क्या कहते हैं, फेक वो बनाए हुए हैं। और आपको किस तरह के प्रूफ चाहिए? एक मिनट, टर्की में बैठे हुए हैं, इनके तो बस्ट कर दिए, इनके ये जो फेक इनकी वीडियोस है, मैं आपको भेज देती हूँ, आपके अभी डीएम आपने मुझे किए, मैं आपको वहां सेंड कर देती हूँ। दे हैव बीन बस्टेड।
یہ فیک پروپیگنڈا ہے. اچھا ان کو روہنگیا کے لیے یہ نہیں بولے, روہنگیا مسلمس کا جینوسائیڈ ہو رہا تھا اس وقت نہیں بولے, ابھی بھی ہو رہا ہے, ابھی بھی کیا ہوا ہے وہاں پہ اس وقت نہیں بولے. بنگلہ دیش میں اٹھا کے جماعتوں کو انہوں نے پھانسی لگائی. انڈیا میں کشمیری فریڈم فائٹرز کو انہوں نے جیلوں میں انہوں نے مارا ہے, انہوں نے پھانسی لگائی. یہ سارے بے غیرت یا پھر چڑیا بھی اڑ جائے تو جی او ہو پاکستان میں یہ ہو گیا. کمان دیکھیں یہ سارے بے غیرت. روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں ہم اس لیے نہیں بات کرتے کہ یہاں سے ہم اسلحہ ان کو بیچتے ہیں. برما کا کون اسلحہ بیچتا ہے؟ آپ ہی بیچتے ہو نا, ہمارے ٹیکس کا پیسہ ادھر جاتے ہیں, ادھر سے اسلحہ لے کے ہم امریکہ سے اسلحہ لیتے ہیں پھر بیچتے ہیں برما جیسے چھوٹی کنٹریز کو, اور وہ جا کے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف یوز ہوتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں تو انڈیا کے لیے مسلمانوں کو لنچ کرنے والے بھی فریڈم فائٹرز ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, اگر آپ مسلمانوں کا اور انڈیا میں جتنے مسلمان ہیں اور یہاں پہ جتنے مسلمان ہیں, اگر آپ یہاں پہ دہشت گردی میں جتنے لوگ ہمارے یہاں مارے گئے ہیں اور وہاں پہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں اس کو آپ پورشنز میں ڈال کے اس کا ریشو نکالیں گے تو ہمارے پاکستان میں زیادہ لوگ مرے ہیں. تو ہماری بہن چلی گئی ہے تو کیا ہم اس سے زیادہ چلی گئی میرے خیال سے نا, وہ چلی گئی ہیں کہ شاید میرے خیال سے بیٹری بیٹھ گئی تھی. شیٹ یار انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی. مشکل ہو رہی تھی میرے کو بھی بہت زیادہ, لیکن خاتون تھی تو میں ظاہری بات ہے کہ ایک دم وہ نہیں کر سکتا تھا, لیکن وہ بس بولتی ہیں تو پھر بولتی رہتی ہیں, پھر سننا نہیں چاہتی. نہیں یار, وہ ٹائمز آف کراچی ٹائمز آف اسلام آباد پڑھ کے بات کرتی ہیں یار ایک بات ویسے دودھ کی دلیل اچھی ہے, یہ استعمال ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ دودھ والی دلیل ہے سر, کسی دن اگر کوئی کام کرے جو اشیاء خوردونوش کی قیمتیں ہیں ٹیسکو میں یا ایسڈا میں یا سینسبری میں, مطلب جو اسینشیل آئٹمز ہیں لائک دودھ دہی اس طرح کی وہ چیزیں, اور پاکستان میں قیمت ایک بہت اچھی سٹوری ہو سکتی ہے, بہت اچھا تقابل ہو سکتا ہے سر. ڈاکٹر صاحب سب بالکل درست فرما رہے ہیں. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ ان کروں گا. ہم مسلمانیت ہماری جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے. آپ نے بھی ٹیسکو ایسٹا وغیرہ کا نام لیا, میجر برانڈز ہیں سپر مارکیٹس کے انگلینڈ میں اور ویسٹ میں. ان میں رمضان میں اسپیشل آئلز ہوتے ہیں, انہی تمام آئلز میں سے, اور اگر آپ اس آئلز میں سے چیزیں اٹھائیں گے وہ رمضان آئلز کہلاتے ہیں, اور وہ ہائیلی ڈسکاؤنٹڈ ہوتے ہیں نیئر ٹو دا اوریجنل پرائسز. اچھا, اگر آپ اس کی ہم ایک مثال دے رہا ہوں, دودھ علت سے دودھ وہاں سے اٹھانا ہے تو اس کی پرائس جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ ہے, اور پرلے کاؤنٹر سے جا کے اٹھا رہے ہیں تو وہ اوریجنل پرائس پہ. یہ دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑا واضح ایک خوبصورت سی بات فرمائی ہے کہ بے عدل کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا, کفر کے ساتھ رہا جا سکتا ہے. جہاں پہ عدل ختم ہو جاتا ہے وہ سوسائٹیز تباہی کی طرف چل پڑتی ہیں. ہمارے ساتھ جو میجر ڈیلیما ہے, ہم کہیں اور بھی ڈیویٹ کر کے کسی اور طرف لے گئے تھے ساری ڈسکشن کو. ڈسکشن واز اباؤٹ پاکستان انسٹیٹیوشن, اور کیا اسٹیٹ ہماری جو ہے وہ اسٹرانگ ہے کہ نہیں ہے, اور اس کا جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں مینس طالبان یا باقی جو دوسرے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ اس کو کس طرح پینلائز کر سکتے ہیں. ہماری ڈسکشن یہ تھی. بہرحال میرا خیال ہے یہ بھی شاید خود ہی انسٹیگیٹڈ ہوتا ہے, ایسے لوگ بھیجے جاتے ہیں تاکہ جو بیسک ٹاپکس ہیں ان سے جو نظریں ہیں وہ ہٹا دی جائیں. بالکل اسی طرح جس طرح جب کوئی میجر ایشو کھڑا ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک عوامی رائے کریٹ ہو رہی ہے تو اس میں فٹ ٹماٹر کا مسئلہ لا دیا کھڑا کر دیا جاتا ہے, کوئی اور چیز کھڑی کر دی جائے گی, کوئی بجلی ایک دم بند کر دی جائے گی. نہیں, وہ تو ان کا مسئلہ یہ ہے, ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ بحث کو موڑ دو, جس چیز پہ بحث ہو رہی ہے اس پہ ہونے نہ دی جائے. لیکن یہ ہے کہ ہم بحث سمیٹ چکے تھے, ہم نے کہا انٹرٹینمنٹ جاری ہے, چلو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں سارے. نہیں, لیکن یہ جہاد سمجھ کے کام ہونا چاہیے کہ جو ویسٹ میں قیمتیں ہیں مختلف ممالک میں کھانے پینے کی, جو بنیادی اشیاء کی, کوئی لگژری آئٹم نہیں, دودھ دہی سبزی اس طرح کی جو موٹے موٹے ٹماٹر ہو گیا پیاز ہو گیا, ان کی کوالٹی اور ان کی قیمت, اور ان کو یہ جو کہتے ہیں نا بار بار پیٹرول کے اوپر کہ پاکستان میں پیٹرول ریجن میں سب سے سستا ہے, تو اس کے اوپر اب یہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ نا جو ہے بات کرنا, طنز کرنا, یہ سب کرنا, ان سب چیزوں کو ذرا دکھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ٹماٹر لندن سے مہنگا ہے. بھائی ہالینڈ میں ہم کوکنگ آئل جو ہے ہمیشہ 2.5 یورو کا 2 لیٹر لاتے ہیں, ٹھیک ہے, 500 روپے کا 2 لیٹر, آپ سے سستا ہے. دودھ کی قیمت آپ کو انہوں نے بتا دی. ہم انڈے گرمی ہو سردی ہو جو مرضی موسم ہو, ہم انڈے اگر ٹرے لیں تو وہ 2-2.5 یورو کی ٹرے ہوتی ہے 30 انڈوں کی, لائک 500 روپے کی, ٹھیک ہے. آرگینک لیں وہ سلائٹلی مہنگے ہوتے ہیں. چینی ہمارے پاس گرمی سردی جو مرضی موسم ہے وہ
50 सेंट्स के अराउंड रहती है, 50-55 सेंट्स के इसेंशियल्स की बात करें ना, और टमाटर अराउंड द ईयर मोर और लेस यूरो पे रहते हैं, ठीक है। आलू और प्याज अराउंड द ईयर अगर आप डच सुपर मार्केट की बजाय आम मार्केट से जाकर खरीदेंगे, वो अराउंड द ईयर आपको 2 यूरो के 5 किलो मिलते हैं या 1.5 यूरो के 5 किलो मिलते हैं। इसेंशियल्स हमारे पास रियल वैल्यू में करें तो ऑलमोस्ट वही कीमत है जो पाकिस्तान में है, लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ पे मिनिमम इनकम 3 लाख रुपया बनती है पाकिस्तानी, मिनिमम जो सोशल भी ले रहा है 3 से 4 लाख रुपया पाकिस्तानी ले रहा है, उसके लिए इन चीजों की ये कीमत है। पाकिस्तान में जो आपकी चीजों की कीमत है वो पाकिस्तान की इनकम का लिहाज से जब आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इन मॉनेटरी वैल्यूज जो चीज यहाँ पे हमारे पास 300 की है वो आपके पास 30 रुपए की होनी चाहिए, तब वो लोगों के लिए अफोर्डेबल बनती है। वहां पे वो बहुत गहरा प्रॉब्लम है उस मुल्क का कि वहां पे लाइफ अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल इस चीज को कभी कोई रैशनली कंपैरिजन ही नहीं करता। यार आप पाकिस्तान में एक गरीब बंदा है, वो मजदूर है, वो सुबह सुबह मोटरसाइकिल पे किक मारता है, वो 200 रुपए की दिहाड़ी लगाने जाता है, यार वो 50 रुपए का तेल लगा के चला जाता है। उसके लिए पेट्रोल आप रियल वैल्यूज में कंपैरिजन नहीं कर सकते प्राइसेस का, कि आप कहीं 100 रुपए की चीज 75 रुपए का तेल दूध जो है वो इंग्लैंड में है और 75 रुपए का पाकिस्तान में है। आपने रियल वैल्यू में देखना है कि आपकी इनकम कितनी है और वहां पे कितनी इनकम वाले के लिए वो सर वो बिल्कुल सही है, वो सब चीजें हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भी जो सूरत हाल है उसमें आप देखें, अगर यूके में बर्तानिया जैसे मुल्क में 75 रुपए का दूध है और पाकिस्तान में जो है वो 170 रुपए का डब्बा मिल रहा है, तो सर इसका ये तो एक सीरियस इशू है ना, बहुत सीरियस इशू है ना ये। नहीं वो तो हर चीज आप यार जूसेस आप उठा लें, आप जो ये जूसेस पीते हैं, अब मेरे ख्याल में नेस्ले का मुझे 4 साल पहले जब पाकिस्तान आया था तब 30 रुपए का वो डब्बा होता था जो छोटा सा सड़क पे चलते हुए लेके पीते हैं, अब तो 50 40 का, हाँ मेरा ख्याल है 40 का है, ठीक है। और हम यहाँ बच्चों के लिए जूस लेके आते हैं, जो ऑर्गेनिक जूस होता है ना वो 8 या 10 होते हैं यूरो, 1.5 यूरो के, ठीक है। प्राइसेस का हमारे पास बहुत चीप है। अभी हम बात करें सुपरमार्केट शेल्फ की, अगर हम यूरोप में ओपन मार्केट में चले जाएं तो इसको 1/3 कर लें प्राइसेस, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो कैसे वैसे ही है बिल्कुल जो। तो इसलिए ये कंपैरिजन लाइक अंदाजा है लोगों को, लेकिन इनकम कंपैरिजन के बगैर प्राइस कंपैरिजन मेरे ख्याल में लाइक या उसकी एक वैल्यू है, लेकिन वो उस तरह रियल बनती नहीं है जो नहीं। वो तो देखिए इनकम कंपैरिजन के हिसाब से तो वो फिर एक भाई, मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि जी पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम इस वक्त है वो मेरा ख्याल है $1200 है या पता नहीं क्या है, और आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो मेरा ख्याल है इस वक्त 30,000 यूरो है, आई थिंक 25,000 यूरो है, कितनी है कितनी है ना, हाँ है ना। तो अब बात ये कहाँ $1200 कहाँ पे 25-30,000 यूरो, और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि कीमतों की, और जो वहां कीमतें कम निकल रही हैं पाकिस्तान में ज्यादा निकल रही हैं, तो ये तो एक सोचने समझने वाली बात है ना। इसके ऊपर ना कभी कोई सियासतदान बात करेगा ना कुछ टॉक्स में बात होगी। अगर देखना एक पूरी एक स्पेस का एक अलग मौजू बन गया है ये मसला। ये है कि जब किसान प्रोड्यूस करता है वो मार्केट में लेके जाता है, उसे 10 रुपए लिया जाता है। पाकिस्तान में जो सप्लाई चेन का सिस्टम है, इसका फॉल्ट सप्लाई चेन का सिस्टम है जो कि एसेंशियली स्टेट ने बिल्ड नहीं करना, बहुत एक अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है इसमें, और हमारे पास स्टोरेज वेयर हाउसेज नहीं है, प्राइस कंट्रोल नहीं है उस तरह। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो ग्रीन हाउस प्रोडक्शन नहीं है, लाइक अगर हम वेजिटेबल्स और इन चीज़ों की बात करें। और गवर्नमेंट का रोल ये है कि जैसे चीनी एक्सपोर्ट हो जाती है, गंदम एक्सपोर्ट हो जाती है, कपास एक्सपोर्ट हो जाती है, बाद में इम्पोर्ट करते हैं। कार्टलिंग है, स्टेट इज हेड ऑफ द कार्टेल्स। लेकिन बहुत सारे हमारे जो अंडे टमाटर वगैरह की प्राइस का मसला है, उसका बहुत बड़ा मसला जो है वो सप्लाई चेन सिस्टम्स ना होना है। और सप्लाई चेन्स पे पाकिस्तान के ना किसी बिजनेस ने इन्वेस्ट किया है ना किसी ने किया, और वो बिजनेसेस ने इन्वेस्ट करना है। और स्टेट इतनी एंटी बिजनेस है, इतनी एंटी बिजनेस है, तो जब ऊपर चले जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये टमाटर या आलू की प्राइस में स्टेट का दखल अंदाजी है या इसको कंट्रोल कर भी सकती है। स्टेट का काम सिस्टम्स बिल्ड करना है, सप्लाई चेन, स्टोरेज सिस्टम्स, प्रोडक्शन कम नहीं है, वेस्टेज बहुत ज्यादा है इन्हीं चीजों की वजह से। टमाटर अब महंगा या सस्ता होने में गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है ना हसन भाई। नहीं, मेरे भाई ये कहने का, देखो वो जो राय ने आखिर में बात की ना, वही दुरुस्त बात है कि गवर्नमेंट क्या करती है, सिस्टम बनाती है, उस एक निजाम होता है, उस निजाम के तहत। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आज से कोई 8 साल पहले जो हमारी स्पीड थी ना, यानी आप जो एक एवरेज स्पीड होती है 25 किलोमीटर पर आवर थी,
ठीक है ना, 1 घंटे की 25 किलोमीटर। अब वो जो मोटरवे थोड़ी डेवलप हो गई सारी कुछ, तो बढ़ के मेरा ख्याल है वो 35-36 इस तरह से हो गई है, जबकि मेरा 50 से ऊपर होनी चाहिए किसी भी एक डेवलपिंग कंट्री की स्पीड, वो नहीं है। आपका रेलवे नेटवर्क आपके एनएलसी ने, फौज ने बिल्कुल तबाह कर दिया, ठीक है, वो जाके हमारे ट्रक चलें, ठीक है जी। आपके यहाँ जो तरसील है सब्जियों की, फलों की, खाने पीने की चीजों की, गांव से शहरों तक, मंडियों तक, वो ट्रेन से होती ही नहीं है, क्योंकि आपकी ट्रेनें रिलायबल नहीं, वो ट्रकों से होती हैं, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और वो फिर अल्टीमेटली जो है ना बढ़ती चली जाती है कॉस्ट। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक निजाम में ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक और बात बताऊं, बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो बेस रेट है ना सर, वो 0.10% है, 0.10%, ठीक है सर। पाकिस्तान का स्टेट बैंक का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो 7.5% है सर। अब आप, अच्छा, उसके बाद जब बैंक लोन देता है पाकिस्तान में किसी भी बिजनेस के लिए, तो वो 10, 10.5, 11% पे देता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड से अगर आप एक लोन लें तो वो 2.25 से 2.75 के बीच में आपको लोन मिल जाता है बिजनेस करने के लिए। अब इससे आप अंदाजा कर लें कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर आप 11% पे बैंक से पैसा उठा के बिजनेस कर रहे हो और कहाँ आप 2.25% पे उठा के कर रहे हो, जो बिजनेस फ्रेंडली की बात गुराया कर रहे हो, वो बात है। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? सॉरी टू इंटरप्ट। बिल्कुल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ मौका देने के लिए। सबसे पहले तो आई वुड बलूचिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान के सरबचारों की तरफ से अहमद वकास गोराया साहब को हमारा सलाम। वो हमारे एक कॉमरेड, ऐसे कॉमरेड हैं कि जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी गई है, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली हम बलूचिस्तान वाले जो भी हमारे कॉमरेड्स हैं, उनकी आवाज़ पहाड़ों से बहुत कम निकलती है, और जिनकी निकलती हैं उनकी मस्शुदा लाश बरामद होती है। तो आई सैल्यूट हिम फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, मैं माइक उस टाइम रिक्वेस्ट इसलिए किया था, मोहतरमा थी, मैं बस ये जानने की कोशिश करना चाह रहा था कि भाई वो इस टाइम क्या, मतलब जैसे वकास गोराया साहब ने उनसे पूछा कि भाई आप कौन सा टीवी चैनल देखती है, तो आई वाज रियली इंटरेस्टेड कि वो बताएं, लेकिन शी डिडंट से एनीथिंग। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जितने भी लोग स्पीकर्स पे मौजूद हैं, उनकी जो व्यूज़ हैं, दे आर लाइक जेन्युइन व्यूज़, जो एक आम पाकिस्तानी या उस मुल्क में उस ISI या IMI या जो भी उसके इदारे हैं, उसकी जुल्म और खूनख्वार इदारों की बर्बरियत का मैं ख़ुद पर्सनली निशान हूँ, और अहमद गोराया साहब भी इससे गुजरे हैं। मैंने यहाँ जो नोट किया है, बाकायदा जैसे मरियम साहिबा आई थी, इस तरह के बाकायदा ट्विटर स्पेस पे पेजेस चलते हैं, और वो ये जो माइंड सेट मरियम साहिबा प्रमोट कर रही थी, जहाँ बोलने को कुछ होता नहीं है, क्रिएट कर देती हैं कुछ भी, जो भी दिमाग में आता है। तो इनके साथ अगर एक स्पेस कह दे तन्हाई भाई या अहमद साहब, एक दिन आप इनको बिठाएं, 4 बंदे इनसे हो और 4 हमारी तरफ से हो, ताकि इन इश्यूज़ को अगर हम इनको एड्रेस करेंगे, इनकी ऑडियंस भी सुनेगी। हमारी जो हम फिक्र लोग हैं, हम ख्याल लोग हैं, वो तो ऑलरेडी इश्यूज से अवेयर है, लेकिन ये जो कर रहे हैं, जो फीड कर रहे हैं लोगों के दिमागों में, कम से कम ये बहुत हद तक कम हो सकता है। ये मेरे ख्याल में एक बहुत ताकतवर प्लेटफॉर्म है ट्विटर स्पेस। तो इसका अगर कोई ऐसा बंदोबस्त हो कि ये जो हमें एंटी स्टेट या जो भी लेबल्स हमारे ऊपर लगाते हैं, मैं तो खुद आई एम रियली सॉरी अगर वो आप लोगों में से हो सकता है लोग मेरी व्यूज से इत्तेफाक ना करें, बट आई प्रोपेगेट फॉर फ्री बलूचिस्तान बिकॉज वी हैव हैड इनफ। हमारी लाशें हम गिन नहीं सकते। मेरी फैमिली से कोई 6 नौजवान लापता हैं, और उनमें से एक की लाश एक बलोच चरवाहे के कुत्ते को मिली थी, और वो भी अब पहचान तो नहीं सके। उनकी जेब में यही इन्होंने कोई शनाख्ती कार्ड उसका डाल के, फिर हमें पता चला कि भाई, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में वो DNA का कोई लैब ही ऐसा नहीं है, एक ही है लाहौर में, और वहाँ तक हमारी सुनवाई कहाँ पहुँचती है। तो इसके मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक स्पेस अरेंज किया जाए, बाकायदा उसको मतलब उस पे कैंपेन चलाई जाए कि भाई इस टाइम इतने दिन ये स्पेस होगा,
اور یہ جو سپیکرز ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ان کے ٹرولز ہیں پیڈ ISPR کے، یہ باقاعدہ یہ مشن پہ لگے ہوئے ہیں، تو ان کو اگر ہم انوائٹ کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے، پاکستانیوں کو پتہ چلے کہ بھائی سچائی کیا ہے. تو دیٹس آل آئی وانٹیڈ ٹو ایڈ. تھینک یو سو مچ فار لیٹنگ می اسپیک، اور تھینک یو سو مچ. دیٹس آل. سید صاحب آپ نے بہت کمال کی بات کی، اللہ آپ کو خوش رکھیں. اچھا، مزے کی بات مجھے یہ لگی کہ اسپیس کے لیے اگر ایک اسپیسیفک ہیش ٹیگ اسٹارٹ کیا جائے کہ جب بھی اسپیس ہو تو اس کو کوئی نمبر دے کے شیئر کیا جائے، کیونکہ ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یار ہم کسی جگہ بیٹھ کے بات کریں اور ڈسکشن ہو جس سے سب کو کچھ سیکھنے کا ملے. تو اگر اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ہیش ٹیگ ہو تو اس میں ہمیں جوائن کرنے کا، یا کوئی گروپ ہی کوئی بنا دے ٹویٹر پہ ہی، تاکہ جیسے ہی کوئی اسپیس اسٹارٹ ہو تو ہم سب جوائن کریں. یہ ٹائمنگ کا بتاؤ. میں دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں صرف نا ایک چھوٹی سی، کہ کلب ہاؤس جوائن کریں، کیونکہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل ماڈریٹر ہوتے ہیں. جس بندے نے یہاں اسپیس شروع کی ہے نا وہ اب باؤنڈ ہو گیا ہے. جیسے میری بیٹری ختم ہو گئی ہے، چلا گیا، اس میں 2-3 ماڈریٹر ہوتے ہیں. کوئی چلا گیا اگر اسپیس جاری ہے، 4 لوگ گپ شپ جاری کرنا رکھنا چاہتے ہیں. اور وہاں پہ ابھی آڈینس بھی بڑی کلین ہے، وہاں پہ لوگ سارے موجود ہیں، یوتھ ہی کم ہے، تو اس کی مینجمنٹ بڑی آسان ہے. مطلب ٹرائی ضرور کریں کلب ہاؤس. اگر کلب ہاؤس بھی کیا جائے نا تو اس پہ زیادہ مزے کی گرایا صاحب، آپ نہیں سمجھتے جہاں یہ یوتھیا اور یہ جیسے لوگ زیادہ ہوں وہاں یہ بات اور ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں یہ لوگ زیادہ ہیں، تو میرے خیال میں یہاں یہ زیادہ ہونا چاہیے. پھر ان کے خلاف بھی تو کوئی نہ، مطلب کوئی سچائی بھی تو بولے ان کو، ان کے کانوں تک. نہیں وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب ہم سارے کلب ہاؤس پہ جائیں گے نا، یہ بھی آتے جا رہے ہیں، اب آئیں گے. لیکن میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جیسے اب یہ جو ہے نا بھائی قیدی بھائی جو ہے یہ 6-7 گھنٹے سے چلا رہے ہیں. میری 1.5 بیٹری فون کی ختم ہوئی ہے. یہ میں نے دوسرا فون چارجنگ سے لگا ہوا، پھر اٹھایا میں نے، دیکھنا پہلے آدھی پھر پوری پھر یہ. اب وہ باؤنڈ ہیں بیچارے، فون کو چارجنگ پہ لگا کے باؤنڈ ہیں کہ بعض بندہ بیٹھا ہوتا ہے ویکینڈ پہ، پہلا لمبی اسپیس چلتی ہے، اگر وہ بند کر دیں گے